रिकॉर्डिंग में से जल्दी याद आ गया बहुत। चले yeah, so okay, so basically तो मैं क्या बात कर रहा था, so incident management team has a crucial role to play within handling that incident, as well as the disaster recovery efforts, right? So these are two separate areas basically, but they work together when an incident happens, or they plan that, so that when an incident happens, so that we will have uh, a situation where we can get up and running again within sort of a no time. और इसमें मैंने बताया कि that we have a lot of team collaboration involved in it. और उसमें क्या होता है कि different teams they collaborate with each other, और कौन उनको करवा रहा होता है, इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम ऐसी होती है जो उनको सबको पैचअप करवा रही होती है और लेस कर रही होती है इन द मिडल, एज अ मिडल पर्सन। और उसमें ये है कि दे ट्राई टू डू इट, मिटिगेट दैट इंसिडेंट इफेक्टिवली इन अ प्रोएक्टिव मैनर। और इसमें कुछ फेजेस होते हैं जिसमें कि रूट पहले मिटिगेशन, देन रूट कॉज एनालिसिस, and then comes the lesson learned, that whatever mistakes had happened, it should not be repeated, or we should have learned from those sort of issues. अच्छा, उसमें जो रूट कॉज एनालिसिस होता है उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं कि मिसकॉन्फ़िगरेशन थी, ह्यूमन एरर था, या फिर कोई अटैक था। सो इट ऑल दीज थिंग हैपेंस वुड बी कंसीडर्ड इन रूट कॉज एनालिसिस। अच्छा चलें, खैर, let's go towards the introduction of incident response and disaster recovery. So basically, it explores the critical disciplines of incident response and disaster recovery, key components in safeguarding organizations from the devastating impact of cybersecurity breaches and other disruptive events. So it got both like cybersecurity breaches and any disruptive event. When it says disruptive events, what does that mean? That means it can be a natural disaster like a flood, or anything, whether it's a tsunami, whether it's sort of kind of a landslide or anything. It can happen like natural disruptive events, or cyber security breaches if there's a cyber attack, or probably there would be any sort of malicious activity which brought that business down. So that is something to cope with that. So it's a key component for the safeguarding organizations from these sort of events or attacks. So learn the foundation principles and best practices for effectively preparing, responding, and recovering. So what are these phases? Preparing, responding, and recovering. Basically, these are the phases of incident response, basically. So first we would be preparing, whether it's a disaster recovery preparation or incident response preparation. So as I said, they work together, right? So we will look into the best practices and the foundational principles into it, that we would be preparing for that, we would be responding in time, and we would be recovering from that incident. Let's move forward. And the next is defining incident response. So, okay, so this is, as I said, different sort of scenarios, different sort of definitions, different um, sort of responsibilities around it. ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि one second. Yeah, so it's a rapid reaction, systematic process, and proactive mitigation. Different terminologies, but what was the goal? The goal is to mitigate that incident, handling that incident effectively or proactively, and then go into the lesson learned phase so that it won't happen, and also do the root cause analysis, why it had happened, how it had happened, and what would be the root causes to it, and then how we can avoid it in the future. Rapid reaction. So the rapid reaction is that you don't have to wait down, like if just something had happened and you would be kind of nervous, or you don't know what's going to happen next. That's not how it should be. That would be a complete disaster otherwise, right?
So you know what's gonna happen now. Okay, this is happened. Okay, we are prepared for that already. So we need to give it a reaction, right? In terms of mitigating that, incident response is the coordinated approach to identifying what had happened. Actually, what had happened? First, we need to identify that. So something happened. A SOC analyst informs you, okay, this thing happened. This system is down. The server is been taken hostage or something, whatever. And then you need to identify that, right? Quickly. Okay, this thing happened, right? So this is an incident. This IP is the target, and that's where the malicious activity started, and that's where the kind of a file share was compromised, or this information has been leaked, or whether the network has been down. So this was identification. First thing first, identify, right? Analyze. Then next thing is analyze that. What's going on? What had happened? How did it happen? And what would be the mitigation steps or mitigation strategy around that? And then respond to it, to a security breach or other disruptive event to minimize damage and restore normal operations. Okay, this thing not only work in cyber, it works at various places. It works at various businesses, right? So it's a business terminology, like a risk assessment, right? So as I said, it works around those same assets, what we protect as a business asset, your critical data, right? The data is important asset, right? There are only two assets in the world, right? What are those? Can anybody name them? One, I just named it. What's the other one? The biggest asset in this world? Anyone? No? Okay, I'll answer that. First is the attention, right? All the press, media, whatever, they are trying to seek attention by repeating the same sort of an incident again and again. This thing happened, this thing happened. Whether it happened or not doesn't matter, but they are trying to get your attention, to scaremongering amongst you guys, okay? AI would take your jobs. Yes, AI would basically, it eliminates humans, really? Okay, cool. That sounds really a scary idea, but that's not gonna happen, right? So this is a media attention, right? They're seeking your attention. This is a valuable asset within the industry at the moment, right? And second thing is the data, right? So data is really, really important. So what we're gonna do is we're gonna look into the incident, what had happened, how it had happened, what would be the steps we would take to minimize the damage and to restore normal operations. So basically, we would be storing the normal operations as it is, as usual, how it was working. It should be in the same state. Second thing, it's a systematic process. Yes, it's not just like that you would just jump onto it and everybody's shouting at each other and you would be just looking here and there not to do, and then any cock up would have happened and boom. So rather than basically saving it, you're just making it more mess, right? You're making it more disruptive even. ऐसे नहीं होता. So we got to keep it systematic. That's why the processes plays a crucial role again. Processes होना बहुत जरूरी हैं कहीं पे भी. Written down processes, SOPs, हर operations के SOPs होते हैं, चाहे वो कोई physical operation हो, चाहे वो cyber operations हो, चाहे वो anything, if it's written down in a systematic, in a process way, then it would be easy to handle that. That's why it's always been advised that follow the SOPs, follow the processes, follow the workflows, right? Follow the playbooks. Cybersecurity guys क्या करते हैं analysts? They follow the playbooks, they follow the process, they follow the triaging process कि किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको प्रायोरिटी नहीं देनी, किसको लो प्रायोरिटी पे रखना है. Sift through the incident. So if you don't know, अगर गलती से आपने एक लो इंसिडेंट को हाई प्रायोरिटी दे दी तो किसका टाइम वेस्ट हुआ? The whole organization would be basically सबका टाइम जाया हो रहा है. सब इन्वॉल्व हो रहे हैं. The organization would be involved, leadership, the cyber analysts, the engineers, the basically the managers, the incident teams, third parties, vendors, this, that. तो इसीलिए the process follow करना बहुत जरूरी है और processes को प्ले बुक्स उनके लिए डिवाइस की जाती हैं
बनाई जाती हैं प्ले बुक्स, उसके लिए स्पेशल बंदा हायर किया जाता है, मतलब बंदा बंदी जो भी उसके लिए हायर किया जाता है, एंड दे डिवाइस those playbooks for security analysts. Okay. Systematic process, it follows a structured structured life cycle with distinct stages, right? लाइफ साइकिल मैंने पहले कुछ थोड़ा सा जिक्र किया था ना, लाइफ साइकिल क्या होती है इसकी। बेसिकली आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है, रिस्पॉन्ड करना है, मिटिगेट करना है, एंड लेस फिर उसको रूट कॉज एनालिसिस एंड देन लेसन लर्न। ये इसके एक साइक्लिक फेजेस हैं। तो so it follows a structured life cycle with distinct stages from preparation to recovery, ensuring a methodological and effective response to incidents. तो क्या होता है कि बेसिकली एक जब फेज से स्टार्ट होते हैं, हम आइडेंटिफाई किया, फिर हमने उसको प्रिपेयर करना शुरू किया फॉर मिटिगेशन और रिकवरी। उसके बाद फिर हमने इंश्योर किया कि बेसिकली ये रिपीट ना हो, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनाए जाएं, कुछ ऐसे मेथडोलॉजिकल अप्रोचेस ली जाएं या इफेक्टिव रिस्पांस दिया जाए इंसिडेंट को, कि एक तो मिनिमम टाइम फ्रेम में उसको रिजॉल्व कर लिया जाए, और दूसरा उसके अराउंड ऐसी स्ट्रेटजीज की जाए कि इट वुड नॉट। ये सारी इसकी सिस्टमेटिक प्रोसेस की स्टेजेस हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्स इसकी सारी स्टेजेस हैं। प्रोएक्टिव मिटिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली अगर आप उसको मिटिगेट सही नहीं करोगे तो वो स्प्रेड कर जाएगा, या फिर वो फर्दर क्या करेगा कि जो थोड़ा नुकसान होना था वो ज्यादा होगा। डिजास्टर, इट वुड बी एज डिजास्टर्स, राइट? इट वुड बी नॉट लिमिटेड टू सर्टेन सॉर्ट ऑफ सिस्टम्स, ऑफिसेज और बिल्डिंग्स, बल्कि वो स्प्रेड करेगा और ज्यादा नुकसान दे जाएगा। इसीलिए प्रोएक्टिव अप्रोच होना बहुत जरूरी है, प्रोएक्टिव मिटिगेट करना उसको बहुत जरूरी है। Effective incident response aims to not only resolve the immediate crisis, but also learn from the experience to strengthen the security and prevent future incidents. What it says basically, it says that you have to proactively resolve that incident. उसको response आपने ऐसा देना है कि आपका aim क्या होना चाहिए, not only to resolve the immediate crisis, ये नहीं कि सिर्फ आपने वो incidents को tackle कर लिया and that's it, end of the story, नहीं, but also to learn from the experience. मैंने क्या कहा था, lesson learned होता है, lesson learn, आपने experience में क्या learn किया है सारे उसमें, ताकि दोबारा के लिए आसानी हो, कोई ऐसा incident हो जाए तो you know what to do, you know how it happened, you know what would be the whose fault was that and all that. ये blame game नहीं होती बेसिकली, लेकिन इसमें ये होता है कि लर्निंग हो रही होती है। इट्स नॉट टू ब्लेम ईच अदर बट टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, राइट? तो दैट शुड बी द स्पिरिट। फिर क्या होता है कि सिक्योरिटी पोस्चर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाती है और प्रिवेंट किया जाता है फ्यूचर इंसिडेंट्स को, कि दोबारा इंसिडेंट्स फ्यूचर में ना हो, हमारा सिक्योरिटी पोस्चर इतना स्ट्रांग हो जाए। ठीक है? तो क्या होता है कि that would be the kind of defining the incident response, कि उसमें rapid reaction है, systematic process है, proactive mitigation है, and all these sort of things। इसको further expand करेंगे आगे चल के, कि basically let me थोड़ा सा छुप गया है इसके नीचे। अच्छा, सेकंड। द इंसिडेंट रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल, राइट? ये लाइफ साइकिल है जिसकी मैं बात कर रहा था। टेक अ नोट ऑफ इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, right? These steps are very important. Somebody would ask you, what are the steps of incident response life cycle? You need to know that each step, right? उसमें क्या होता है, सबसे पहला स्टेप प्रिपरेशन। आप क्या बताओगे या आप क्या इंप्लीमेंट करोगे व्हेन यू वुड बी थिंक एज अ साइबर एनालिस्ट, राइट? आप एक काम कर रहे हो शॉप में, राइट? अब क्या करोगे सबसे पहले? ओके, पहला तो ये होता है कि आप ट्रियाजिंग कर रहे हो, इंसिडेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, आपने फॉल्स पॉजिटिव्स, फॉल्स नेगेटिव्स, दिस इंसिडेंट इज इट इज एन इंसिडेंट, दिस इज नॉट एन इंसिडेंट, दिस इज अ टाइम वेस्ट, जस्ट साइड इट, पुट इट थ्रू असाइड। वो सारी चीजें आप कर रहे हो। लेकिन एक तरफ इंसिडेंट हो जाता है, राइट? इंसिडेंट टीम्स आर इन्वॉल्व, third parties are involved, then management is involved, then who else is involved? Would be probably a threat intel team is involved, probably your cyber engineers are involved, and all the analysts would be working on that incident, right?
वहां पास ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते थे कि पूरी 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 टीम्स बैठी होती थी, सीसो साहब भी आए होते थे वहां पे, मतलब एक पूरा एक माहौल बना होता था कि उसमें ब्रीफिंग दी जा रही होती थी। एवरीबॉडी हैज गॉट डिफरेंट टास्क जो उसको साइन की जाती थी, आप ये या वो, पूरा एक उसके शौक के अंदर ही सारा काम हो रहा होता था उसको मिटिगेट करने के लिए, राइट। तो उसमें वेरियस टीम्स वुड हैव बीन इन्वॉल्वड, कि उसमें वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट वाले, थ्रेट इंटेलिजेंस वाले, एंड दे वुड बी लुकिंग इनटू द डार्क वेब ट्रेसेस के डाटा कहाँ कहाँ लीक हुआ है, कहाँ कहाँ उसको सेल किया जा रहा है, क्या हो रहा है। सिमिलरली डिफरेंट उसके होते हैं इंसिडेंट्स के। प्रिपरेशन क्या होती है कि जब आप प्रिपेयर करते हो कि डेवलप एंड मेंटेन अ कॉम्प्रिहेंसिव इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, train personnel and ensure access to necessary resources। जब इंसिडेंट रिस्पांस के लिए, क्योंकि ये एकदम नहीं होता, ये इंसिडेंट के टाइम नहीं होता, ये प्रिपरेशन पहले से ही तैयार की जाती है। मैंने क्या कहा था, प्रोसेसेस पहले से बना के रखे जाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इंसिडेंस रिस्पांस प्लान, मार्क दिस, कॉम्प्रिहेंसिव इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, दिस थिंग, ओके। सो ये बहुत जरूरी होता है। इसके बगैर आप, यू कैन नॉट रियली काइंड ऑफ अ गुड सॉर्ट ऑफ प्रिपेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके पास ये चीज नहीं होगी तैयार, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या होती है, ट्रेन पर्सनल। आपने अपने लोगों को ट्रेन रखना है उस कॉम्प्रिहेंसिव इंसिडेंट्स प्लान पे। क्या करना है आपने, फर्दर उनको ट्रेन करना है बेसिकली। कि अब वो इंसिडेंट प्लान तो बन गया, लेकिन अगर आपने पर्सनल को अपने ट्रेन नहीं किया होगा तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग दैट इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, क्योंकि वो ट्रेन ही नहीं होंगे उस पे, वो क्या करेंगे। उसको एक सिमुलेशन ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है जी, कि यू वुड बी लाइक इन अ रियल इंसिडेंट, ओ चलो जी इंसिडेंट हो गया, देन एवरीबॉडी वुड गेट टुगेदर, पुट योर हेड डाउन, and everybody starts working on that, follow the comprehensive incident plans, response plans जो भी होता है, identify करें जी, contain करें, eradicate करें, recover, what the lesson learned and all that। ये प्रैक्टिस होती है इसकी। ऐसे नहीं होता कि आपको एकदम शॉक मिले, सरप्राइज हो आपके जी। It's not something surprise, it's basically we are already well prepared for that। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, मकसद ही यही होता है कि आपने पहले से अटैक्स के लिए प्रिपेयर्ड रहना। so you would be having a good, very good understanding of what attacks are and what attacks consequences are। उसको कैसे मिटिगेट कैसे किया जाता है, हो भी जाए तो उसको कैसे मिटिगेट किया जाता है। रैनसमवेयर आ गया है जी अब तो। इट्स नॉट लाइक दैट यू स्टार्ट पेइंग टू द हैकर, ओके दिस इज द अमाउंट, प्लीज जान बख्शी कर दो और डाटा वापस दे दो, नहीं ऐसे नहीं होता। um, it would never ever give your key back, it would never ever give your data back, ठीक है। तो ऐसे नहीं, बल्कि rather उसका प्रोसेस होता है that all you got to do is report it, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है which around कि आपने उसको रिपोर्ट करना होता है, अदरवाइज यू would get fined। कि क्या ब्रीच हुई है, आपने अपनी ब्रीचेस रिपोर्ट विद इन सर्टेन टाइम फ्रेम, वो टाइम फ्रेम होता है कुछ दिनों का, उसके अंदर अंदर रिपोर्ट करना होता है। देन ऑल यू गॉट टू डू इज गेट योर बैकअप, राइट। अपना बैकअप तैयार रखें, बैकअप से उसको अपने डेटा को रिकवर करें, उसको आइसोलेट करें उस सिस्टम को, वॉट एवर विच हैज बीन रैंसमवेयर्ड उसको निकाल के आप उसको बैकअप से रिकवर कर लें। एंड देन डू द रिवर्स इंजीनियरिंग या whatever, what would be the root cause, how it ended up in your system, who is behind it, and all these sort of things. Then you can do it at the end. But first, you need a recover. You need to get your systems up and running to ensure कि आपका जो है ऑपरेशंस चलते रहे, स्मूथ ऑपरेशंस आपके चलते रहे। ये इंटरप्शन आई है बट यू गॉट टू गेट इट बैक। इंश्योर एक्सेस टू नेसेसरी रिसोर्सेज। अब इसमें क्या होता है कि आपने एक और चीज इंश्योर करनी है कि आप जो आपके रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। रिसोर्सेज में आपके पास आ रहे हैं जी आपके सिस्टम रिसोर्सेज, राइट। कि आपके पास वो सिस्टम्स हैं जिनसे आप डिटेक्ट कर सको, उसकी एक्सेस है आपके पास। अच्छा, उसके अलावा आर दिस सिस्टम्स अप एंड रनिंग, डू यू हैव अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, डू यू हैव द पोर्टल्स एक्सेस,
of kind of where you have to report what you need to do and all. बेसिकली आपके पास वो सारी चीजें रेडी हैं, ठीक है। जिन वो टूल्स, वो जो है आपके पास कंट्रोल्स एंड ऑल दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, कि जिससे आप उसको एनालाइज कर सको, आइडेंटिफाई कर सको, कंटेन कर सको, रेडिकेट कर सको, रिकवर कर सको, ठीक है। रिकवरी के लिए लेदर टूल्स होते हैं, रेडिकेशन के लिए लेदर होते हैं, कंटेनमेंट के लिए लेदर होते हैं। तो ऑल और दीज रिसोर्सेज अप देयर in case anything happens so that you can utilize that। और आपके पास टूल्स ना हो, आप बैठे रह जाओ, आप क्या करो, ये सिस्टम बंद है जी, ये टूल अप एंड रनिंग नहीं है, ये टीम अवेलेबल नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो सारा क्या हो जाएगा, फिर से मैसअप हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई इट हैज टू बी वेरी सिस्टमैटिक अप्रोच। प्रिपरेशन हो गई। द नेक्स्ट थिंग इज द आइडेंटिफिकेशन। Now it comes down to you have to identify that incident, how it had happened, rapidly detect, analyze, and classify the incident to determine the appropriate course of action, right? पहले आपने डिटेक्ट किया इंसिडेंट को, उसके बाद आपने एनालाइज किया कि इज इट रियली अ इंसिडेंट और वाज इट जस्ट अ फॉल्स पॉजिटिव, और व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रायोरिटी इट इज, ये इंसिडेंट किस प्रायोरिटी का है। क्लासिफाई कर लिया आपने उस इंसिडेंट को, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने उसका कोर्स ऑफ एक्शन डिफाइन किया कि अब इसके साथ करना क्या है, ठीक है। अब इंसिडेंट को कैसे हैंडल करना है। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेज ऑफ दैट इंसिडेंट लाइफ साइकिल। फिर थर्ड लाइफ उसमें क्या आ जाती है, स्टेज लाइफ साइकिल की, आपने उसको कंटेन करना है उसको। बेसिकली कंटेनमेंट का मकसद क्या होता है कि बेसिकली आपने ऐसे मेजर्स लेने हैं कि वो लिमिट हो जाए उसका स्प्रेड, मतलब वो लिमिटेड हद तक रह जाए, वो ज्यादा स्प्रेड भी ना करे या उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा ना हो। एक मिनिमम लेवल पे उसका इम्पैक्ट हो, जहां तक आपने उसको, जहां पे आपने आके उसको पकड़ा था वहीं पे ही उसको कंटेन कर दिया और उसका इम्पैक्ट फर्दर नहीं हुआ, ठीक है। प्रिवेंटिंग फ्यूचर डैमेज और फर्दर डैमेज, ठीक है, कि आपने उसको प्रिवेंट वहीं पे कर दिया कि वो फर्दर डैमेज ना कर सके आपके सिस्टम्स को। एक मालवेयर मैंने क्या कहा था कि वो रेप्लिकेट करता है, पेनिट्रेट करता है फर्दर रिसोर्सेज में। तो आपने उसको, अगर एक सिस्टम में आपने उसको पकड़ाया, यू वुड बी डेफिनेटली आइसोलेटिंग दैट सिस्टम स्ट्रेट अवे, रैपिडली डिटेक्ट करने के बाद एनालाइज, क्लासिफाई भी हो, सब कुछ हो गया, आपने उसको फटाफट कंटेन करना है, ठीक है। आपने उसको सिस्टम को आइसोलेट किया, क्या होगा उससे, उससे ये फायदा होगा कि वो जहां था वहीं पे आइसोलेट हो जाएगा, एंड देन you would be giving it back to the forensics team who would be investigating it further, और उसको वो जो है क्लीन करेंगे वहां से। तो ये चीज होती है बेसिकली। आपका जहां तक काम था, आपने उसको आइडेंटिफाई किया है, आपने उसको कंटेन कर लिया, ठीक है। नाउ इट्स कम डाउन टू अनदर टीम विच विल बी अनदर स्टेप विच बी द रेडिकेशन, और मे बी इसमें कुछ और टीम भी इन्वॉल्व हो, ठीक है, जिस तरह मैंने अभी मेंशन किया फोरेंसिक्स भी होती है। सो वी यूजुअली पास इट डाउन टू, अगर इस तरह के कोई इंसिडेंट्स हों जिसमें के फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो, उसकी फुटप्रिंटिंग जो है, और उसकी जो है क्या मालवेयर एनालिसिस करना हो, या फिर हाउ इट गेट डाउन टू योर सिस्टम, ठीक है। तो उसको ट्रेस कर, ऑल दीज थिंग्स, डिफरेंट टीम्स, फोरेंसिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। तो अब क्या होगा कि eradication may remove the root cause of the incident and eliminate any remaining malicious elements from the system। उसको वो क्लीन करेंगे, एलिमिनेट करेंगे जो उसके अंदर कुछ ऐसी मलिशियस सॉफ्टवेयर या मलिशियस स्क्रिप्ट या कुछ ऐसा उसके अंदर रह गया होगा, किधर हिट हाइड किया हुआ था या किस उसमें फाइल में था, whatever, वो उसको जो है वहां से एरेडिकेट करेंगे, वहां से उसको निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे वहां से, ताकि if that device would be reconnecting back to the network, उसको इफेक्ट ना कर सके, फर्दर स्प्रेड ना कर सके। So that is very important। And then comes down to recovery। और उसमें क्या होता है कि आप अपने नॉर्मल ऑपरेशंस को रिस्टोर करते हो। जो आपका डेटा जो है लॉस हुआ होता है, उसको रिकवर किया जाता है थ्रू द मींस ऑफ बैकअप एंड इंश्योर द सिस्टम इज फंक्शनिंग सिक्योरली। अब बैकअप्स में भी किस कई तरह के बैकअप्स होते हैं। एक सिस्टम स्टेट बैकअप होता है,
ठीक है, जो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली पीरियोडिकली वो उसका बैकअप बनाता रहता है, ठीक है। वो मिसकॉन्फ़िगरेशंस के लिए ज्यादा यूज होता है कि आपकी कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गई है, कोई ऐसी चीज आपने इंस्टॉल कर दी है जिसने कि दूसरी चीज को भी खराब कर दिया है, सिस्टम की फंक्शनैलिटी खत्म हो गई है, तो आप क्या करते हो, सिस्टम स्टोर रीस्टोर बैकअप्स में जाते हो और उसको इमेज को दोबारा रिस्टोर कर लेते हो और वो उसी स्टेट में आ जाता है, वो एलिमिनेट कर देता है खुद ही सारी चीजों को, रेडिकेट कर देता है। ठीक है, एक सिस्टम बैकअप, एक फिर आपको ऑफ साइट बैकअप होता है कि जस्ट इन केस इफ एनीथिंग हैपन, वो आप भी periodically वो बैकअप्स मैन्युअली भी लेते रहते हैं उसके बैकअप्स, अगर मैन्युअली नहीं आपने उसको ऑटोमेटिक भी आजकल कर दिया है, उसको ऑटोमेटिकली भी वो क्लाउड में जाके आपके बैकअप्स को स्टोर कर रहा होता है, जैसे क्लाउड बैकअप्स उठाते हो उसमें डाल देते हो। और अगर एक और चीज ये है कि आपने ऑफ साइट बैकअप भी रखा होता है, क्लाउड में नहीं रखा, तो एज आई साइट के बैकअप्स भी, बैकअप का भी बैकअप है और बैकअप का भी बैकअप है, उस बैकअप का भी बैकअप है, मतलब ऐसे ही चलता है सिस्टम, ठीक है। तो वी हैव अ लॉट ऑफ बैकअप्स जस्ट इन केस, इट्स अ लेसन लर्न बेसिकली व्हाट हैड हैपेंड अर्लियर। ठीक है जी, हमारा डेटा हमारे पास था ही नहीं है, एक बैकअप तो वो भी खत्म हो चुका था, तो व्हाई वुड वी शुड हैव अनदर बैकअप एक्चुअली। So these things basically gives us a lot of information around the processes, around the data, around the data loss, around the data recovery, around the data backups, around so many stages of it. अच्छा, अब उसके बाद फाइनली क्या होता है कि जब ये सारी चीजें आपकी हो गई, ठीक है जी, फिर एक स्टेज आती है जिसमें कि आपने क्या करना होता है, यू वुड बी गोइंग इनटू द लेसन लर्न्ड। आपने बैठना है, उसको रिव्यू करना है इंसिडेंट को सारे, document findings and implement improvements to strengthen the organization security posture। ठीक है, आपने फिर उसको डॉक्यूमेंट भी करना होता है, सारी जितनी फाइंडिंग्स आपने की हैं कि क्या क्या हुआ था, इंसिडेंट कैसे हुआ था, किसने क्या हैंडल किया था और किस तरह इसको रेडिकेट किया था, सारी स्टेजेस को आपने डॉक्यूमेंट करना होता है कि किस तरह आइडेंटिफाई हुआ, किस तरह कंटेन किया, किस तरह रेडिकेट किया, किस तरह रिकवरी की, इसका रूट कॉज एनालिसिस क्या था, वो डिस्कस किया जाता है लेसन लर्न फेज में। ठीक है, और फिर उसका फायदा क्या होता है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस लेसन लर्न फेज इज बेसिकली it would further strengthen the security posture of your organization so that nothing would be repeated as it had happened now। तो वो फिर उसको जो है इम्प्रूवमेंट फेजेस में उसको ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो थी जी ये 6 phases, राइट, ऑफ एन इंसिडेंट रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल, right? I'm gonna take a short pause, and if there are any questions in your head, just throw it, and I'll be able to answer that. Just give a short pause here. Okay. So the next thing is preparation and planning. How do you prepare? How do you plan? So I will explain incident response plan होता है, पर्सनल ट्रेनिंग होती है कि कैसे आपने उसको हैंडल करना है इंसिडेंट को। All these things would be basically constituting a proper incident preparation and planning. So resource allocation भी उसमें होती है कि उसमें identify and allocate the necessary resources including personnel, equipment, external support to enable a swift and effective incident response। Um, और पर्सनल ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपके पास जो जितने भी इम्प्लॉयज होते हैं या आपके जो एनालिस्ट होते हैं या फिर आपके इंसिडेंट हैंडलर्स होते हैं, so we would ensure that the incident response team and all the relevant staff are properly trained to detect, respond to and to recover from the security incidents। तो उनकी trainings वगैरह on the processes, on the workflows, on the playbooks and all that, तो उनकी वो चलती रहती हैं ऑन द, इवन ऑन द सिक्योरिटी सिस्टम्स, ठीक है, उसमें भी उनकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें वेंडर ट्रेनिंग भी होती है एंड थर्ड पार्टी टूल्स ट्रेनिंग, फिर उसके अलावा आपकी अपनी करियर प्रोग्रेशन, आपकी जो है बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, स्पेसिफिक जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो उसके अंदर इंक्लूड होती है। Incident response plan may develop and maintain a comprehensive incident response plan that outlines the roles, responsibility, and procedures for effectively managing security incidents. So that is another sort of explanation around that stages. And then we come down to
another stage which is the identification analysis. के identification and analysis में क्या होता है, as I already explained, that we should be looking into the rapid detection, incident classification, root cause analysis, impact assessment, right? So we will discuss all these sort of things individually. We did study that in the life cycle of the incident management, but we will be studying this into kind of a depth, each and every sort of a response. Rapid detection में क्या होता है कि basically आप implement करते हो robust monitoring and logging systems to quickly detect and identify security incidents. अच्छा, security incidents ऐसे नहीं होता कि आपके सामने incidents चल रहे हैं, आप उनको detect करी जा रहे हो और उसमें से निकाल के आप कहते हो ये incident ऐसा ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, it's not a donkey job. बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपके पास टूल्स होते हैं, मॉनिटरिंग टूल्स, ठीक है, सिक्योरिटी ऑपरेशन में मॉनिटरिंग टूल्स उसको बोलते हैं, जो कि इंसिडेंट्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं और लॉग कर रहे होते हैं। जिस तरह सीन की मैंने एग्जांपल दी थी, फिर मैंने एक उससे प्रैक्टिकल भी हम लोगों ने किया था, बड़ा ही कोई घटिया किस्म का था कि वो रिजॉल्व नहीं हो रहा था, बट अल्टीमेटली रिजॉल्व हो गया था वो। और उसमें ये था कि आई थिंक उन्होंने थोड़ी सी गलती ये की हुई थी कि जो है डेस्टिनेशन में उन्होंने वो जब डेस्टिनेशन में डाल देते थे तो सोर्स सोर्स डालते थे तो डेस्टिनेशन में अपीयर नहीं होता था। तो उसका फिर मैंने ये किया था हल के आई जस्ट चेक द लास्ट आंसर फॉर दैट विच वाज पेरिस, और उसमें मैंने जब पेरिस डाला तो इट सेड यस इट इज पेरिस द डेस्टिनेशन। फिर मैंने वहां से उसके फिल्टर्स सेट किए वैसे ही अकॉर्डिंगली, ठीक है, मैंने डेस्टिनेशन में डाला 1000 पाउंड तक डाला, और क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली आई गॉट दैट फ्लाइट एंड आई गॉट दैट कल्प्रिट के उसकी सारी डिटेल्स हम उसके वो भी। तो समटाइम्स यू गो अराउंड दैट सॉर्ट ऑफ अ सॉल्यूशन कि आपको कुछ ना कुछ इसका हल करना, बिकॉज सिस्टम्स आर नॉट 100%। अगर आपके पास एक कोई सिस्टम, आप उसको ये नहीं कह सकते कि दिस इज ट्रू एंड आई एम रॉन्ग, बट बेसिकली ह्यूमन एलिमेंट आई नो इज द वीकेस्ट एलिमेंट, बट एट द सेम टाइम द ह्यूमन माइंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन एट द सेम टाइम। बेसिकली जो आप कर सकते हो, आप सोच सकते हो, वो एक सिस्टम आप उसको चला रहे हो, आप ड्राइवर हो बेसिकली ऑफ दीज ऑल दीज एआई टेक्नोलॉजीज, ऑल दीज सिस्टम। I was listening to one of the conferences yesterday on AI, and they exactly said the same thing. If you adopt it now, you would be the pioneers and you would make a lot of money out of it. क्योंकि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है और इनिशियली उसको अगर अडॉप्ट कर लिया जाए, उसमें एक्सपर्टीज ले ली जाए, तो उसको आप ग्रैब कर लेते हो, यू डेवलप समथिंग, यू कम यू नो, तो फिर आपका क्या होता है कि यू वुड बी द पायनियर एंड यू वुड बी लेवरेजिंग इट प्रॉपरली, आप उससे फायदा उठा सकते हो। तो यही हाल अब इसी चीज का, अभी स्केयर मॉन्गरिंग बहुत ज्यादा है, अभी बहुत ज्यादा डर लगा हुआ है कि क्या हो जाएगा क्या, लेकिन ये सब डरा रहे हैं, इससे ऐसा कुछ नहीं है बेसिकली, लेकिन इसको सीखना बहुत जरूरी है। The more you learn the tool sets, the more you learn the automation in your basically daily tasks, automation in your workflows, automation in everything, तो क्या होगा कि उतना ही आपको फायदा होगा। सिमिलरली सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में ऑटोमेशन वी लेवरेजिंग एआई रैपिडली, और उसमें क्या होता है कि सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, लॉगिंग एंड ऑल दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स ये हम उसको जो है ऑटोमेट करते चले जा रहे हैं। उसका रीजन यही है कि you got to automate. If the hacker or attacker is automating their attacks, if you would not do it, then you would be lacking behind. सफर कौन करेगा? डिफेंस वाली साइड। तो इसीलिए फिर उसको जो है हर टूल सेट को ऑटोमेट किया जा रहा है, प्ले बुक्स को ऑटोमेट कर दिया गया, डिटेक्शन को ऑटोमेट कर दिया गया, मॉनिटरिंग को ऑटोमेट कर दिया गया। ऑल यू गॉट टू डू इज टू मेक श्योर कि वो जो आप उसको फीड कर रहे हो या जो आप उसको एल्गोरिदम दे रहे हो, दैट वुड बी एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपने अपने हिसाब से उसको चलाना है, ठीक है। ये इसी तरह मतलब एआई का यही रूल है कि यू गॉट टू ड्राइव इट, एआई आपको नहीं करेगी, आपने जो मशीन लर्निंग है, जो ये एमएलएल है, इसको बेसिकली आपने जो लार्ज लार्ज मॉडल्स आपके सामने आ रहे हैं चैट जीपीटी की सूरत में, बॉट की सूरत में, बिंग की सूरत में, या फिर क्लाउडी की सूरत में, तो वो सारे क्या हैं, आपने उनको खुद चलाना है, उनको ट्रेन करना है। इन मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है बेसिकली, इनको ऐसे नहीं है कि छोड़ दो और वो फिर
आपको वो करी जा रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन, ये तो आप सर्च इंजन से भी ले सकते हो. इट्स नॉट दैट. इट्स बेसिकली द मोर यू इंटरेक्ट विद देम द मोर दे गॉट ट्रेन्ड, राइट. तो इसके पीछे किसका हाथ है? अगेन इज अ ह्यूमन, राइट. अच्छा, आवाज आ रही है? हेलो? हेलो? एम ऑडिबल? जी आ रही है। जी, यस। पहले नहीं आ रही थी, बीच में एकदम ना मेरे गायब हो गई, मगर अब आ रही है। अच्छा अच्छा, इट्स फ्रॉम योर साइड, राइट. सो चलें. अच्छा. अच्छा, तो खैर वो बात एआई की तरफ चली गई, लेकिन इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट बेसिकली कि उसको हर, अब कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि आप अपनी टास्क भी ऑटोमेट कर सकते हो, आपकी ईमेल्स के रिप्लाई भी ऑटोमेट जा सकते हैं. आपकी जो है डेली की टास्क जो हैं, जो यूजुअल जो आप डेली रूटीन पे करते हो, आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो यूजिंग अ चैट बॉट, यूजिंग योर जो है ये, आप अपना कोई एजेंट, एआई एजेंट बना लेते हो या कुछ ऐसा. सो these are the things to do basically nowadays rather than just sitting behind and waiting for what's gonna happen. ठीक है, ऐसे नहीं है. So all you got to do is wake up, put down some effort in learning, and then गेट द थिंग्स डन, राइट. तो उसको अपनी जिंदगी में एम्बेड करें. ठीक है, जो टेक्नोलॉजी को तो कर लेता है. आई वाज द सेम. आई वाज नॉट रियली काइंड ऑफ बॉदर्ड अराउंड दैट कि ठीक है, डॉट कॉम बूम आया तो आई वाज जस्ट बिट काइंड ऑफ ओके, या देन इट बर्स्ट, दैट बबल बर्स्ट, एंड देन फिर से दोबारा से वो रिवाइव हुआ. देन बिटकॉइन. I used to touch every single technology because I have done my mining like around 13 years ago, right? जब बिल्कुल early stages थी, मेरा ख्याल है कि इसकी कोई वर्थ नहीं थी बिटकॉइन की. देन आई स्टार्टेड माई माइनिंग, और मैं यूएसबी पे माइन करता था. इतने बड़े बड़े माइनर नहीं मेरे पास थे. ठीक है, लिटरली 4-5 पाउंड की वो एक यूएसबी आती थी, उसको लगा के मैं अपने जो सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज करता हुआ आई स्टार्टेड माइनिंग. फिर मैंने आंट माइनर लिया था एंड ऑल दैट. देन आई जस्ट, राइट. तो ये था कि कोप अप करना बड़ी चीज होती है, उसको साथ साथ कंसिस्टेंटली करते चले जाना. दैट वुड हैव बीन, बिकॉज आई हैड नो आइडिया कि ये इतनी ज्यादा ग्रो कर जाएगी. बट तो सिंस देन अब ये है कि आई कैन पुट डाउन एज काइंड ऑफ एन एंटीक. वो जो आंट माइनर है उसको एंटीक बना के रख लूंगा, बस यही है. उसको उसकी याद में कि आई वुड हैव बीन माइंड इतने इतने बिटकॉइन हो जाने थे. बट ये इससे पहले फिर ये जो डॉट कॉम था, आई बॉट लाइक अराउंड 70-80 डोमेन्स. खैर वो अब भी हैं, जो बढ़ के मेरा ख्याल है 90 अराउंड 100 के करीब चली गई हैं. तो दिस वाज काइंड ऑफ अ पैशन, राइट, कि आप टेक्नोलॉजी से अलहदा नहीं हो सकते हो. इट शुड बी इन योर लाइफ, राइट. और similarly WhatsApp आया, and then I was like kind of why not, I can use my text messages, I can use my free text messages, क्योंकि यहाँ पे तो हमें फ्री टेक्स्ट मैसेजेस मिलते हैं, पैकेज में होते हैं आपके कॉन्टेक्ट में. तो I wasn't be that much के जी ये. बट लुक, दिस इज काइंड ऑफ समथिंग कि आप टेक्स्ट अपने फोन से कम करोगे, व्हाट्सएप को ज्यादा यूज करोगे बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू इंटरनेट. और देयर आर सो मेनी अदर रीजंस. तो अब ये है कि सिमिलरली is the case with these AI tool sets, is the case with cyber security, is the case with all these sort of कि आने वाले उसमें these will be the huge kind of importance. इनकी और कोई स्किल सेट या हो ना हो, but these will be there, right. तो अगर आज इसको अंडर एस्टिमेट करेंगे तो कल को जाके फिर क्या होगा कि वी वुड बी रिग्रेटिंग व्हाई वी डिडंट पिक दैट अप. ठीक है, को हमने क्यों नहीं सीखा, उसको हमने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया, उसको हमने क्यों नहीं. That's another story. You want to get into the job later or not, but actually you need to learn, right? Learning is the most important thing. और learn करेंगे तो आएगा. तो बात हो रही थी लॉगिंग, रैपिड डिटेक्शन की. लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, दीज आर ऑल ऑटोमेटेड एंड दे डिटेक्ट इट एंड दे आइडेंटिफाई सिक्योरिटी रिस्क्स एज दे अकर. वो आइडेंटिफाई करते हैं, डिटेक्ट होता है. ठीक है, अगेन द ह्यूमन फैक्टर, वी पिक इट अप, वी गिव इट लाइक ओके, let there's incidents team and all that, then we get together and all these sort of worked on the mitigation and stuff. So these tools continuously analyze data for anomalies and suspicious activities. तो ये डिटेक्शन ये 24/7 चल रही होती है. ये टूल सेट्स लगे हुए हैं, इसका आपको
आपने डाउन नहीं इसको करना। बेसिकली अगर ये चल रहे हैं तो इट हैज टू बी एन इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, इट हैज टू बी कि ये 24/7 365 चलेंगे, टू टू डिटेक्ट करते रहेंगे दिन रात उसको। से इसके साथ ट्रैफिक, जिस तरह फायरवॉल अगर है एक, या एंड 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 पॉइंट डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है कोई, तो उसमें वो ऑन रहेगा, सो दैट द ट्रैफिक इन इंग्रेस एंड इग्रेस उसको कहते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड जितनी ट्रैफिक होगी मॉनिटर होती रहेगी। इंसिडेंट क्लासिफिकेशन कौन करता है जी? इंसिडेंट क्लासिफिकेशन कैटेगराइज द इंसिडेंट्स बेस्ड ऑन इन नेचर, सेवरिटी एंड पोटेंशियल, साइबर एनालिस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, दोनों के साथ साथ हमने अब एक तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको डिटेक्ट करके ये सारी चीजें करके दे रहा है, दीज आपने इसको सिफ्ट थ्रू करना है, राइट। आजकल सिफ्ट थ्रू भी हो रहे हैं, बट स्टिल वी हैड टू डू द ड्यू डिलिजेंस। सिस्टम गलत भी हो सकता है, वो आपको कोई गलत चीज भी निकाल के दे सकता है। वो आपने ही उसको बनाया है, आप ही ने उसको ट्रेन किया उस सिस्टम को, आपने उसको, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स जो हैं उसने उनको फाइन ट्यून किया हुआ है कि हमें ये चीज चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, वो चीज फलान, उसको ऐसे ही हमने ट्रेन करना है। तो अब वो गलत भी हो सकता है, सो दैट इज वेयर द साइबर एनालिस्ट वुड बी लुकिंग इनटू इट, कि वो भी 24/7 शिफ्ट्स में काम करते हैं। साइबर एनालिस्ट जो होते हैं वो शिफ्ट्स में रन कर रहे होते हैं। ऑल दे डू इज बेसिकली कि वो इंसिडेंट्स को सिफ्ट थ्रू करते हैं। इफ देयर इज एन इंसिडेंट बीन आइडेंटिफाइड, डिटेक्ट हुआ है, आपने उसको क्लासिफाई करना है, यू गॉट टू पुट योर ड्यू डिलिजेंस, आपने उसको डबल चेक करना है, आपने उसको मेक श्योर करना है ये वाकई में ये इंसिडेंट है या नहीं है, या ये किस नेचर का इंसिडेंट है। समटाइम वो आपको लो कैटेगरी में दिखा रहा होगा, लेकिन वो होगा क्या, वो एक हाई सिविरिटी इंसिडेंट होगा, वो P1 होगा या F1 होगा, कुछ कंपनी P1 कहती है, कुछ F1 भी द डिफरेंट उसकी क्लासिफिकेशंस हर कंपनी में होती है। तो क्या होगा कि वो एक हाई सिविरिटी इंसिडेंट है, आपने उसको उसमें से निकाल के एंड यू पुट इट एज अ लेबल्ड एज अ हाई सिविरिटी, और उसी लिहाज से फिर दूसरी टीम्स को आपने इन्वॉल्व करना है। सो दिस enables the response team to prioritize and deploy the appropriate resources and protocols, right? सो एज आई सेड कि आपने उसको इंसिडेंट को जो है डिफरेंट टीम्स में कर देना है, और आपने उस पर वर्कआउट करना है, उसको प्रायोरिटाइज करके आपने इंसिडेंट रिस्पांस डिप्लॉय करना है अपना, रिसोर्सेज को यूज करते हुए, वेरियस प्रोटोकॉल्स एंड रिसोर्सेज को यूज करते हुए। फर्दर फिर रूट कॉज एनालिसिस, अगेन ये सिस्टम तो नहीं करेगा ना आपके लिए, दैट्स अगेन यू गॉट टू शेयर दोज रिपोर्ट्स, आपने उसको डिस्कस करना है, आपने उसको अपनी स्ट्रेटजीज वैसे बनानी है, आपने अपने टूल सेट्स को वैसे अडॉप्ट करना है, ठीक है। यू गिव इट टू साइबर इंजीनियरिंग टीम, व्हाट दे वुड डू, दे वुड काइंड ऑफ फाइन ट्यून योर सिस्टम, आपको सिस्टम को फिर से वो उसमें कि अच्छा ये चीज हमने नहीं इसमें की थी, ये इंसिडेंट हुआ है, ये इस तरीके से ये आया था, आपने उसको चेंज कर दिया उस पॉलिसी को, या उसके अंदर कोई ऐसा आपने एल्गोरिदम डाल दिया कि इट वुड बी अगेन ब्लॉकिंग दैट और डिटेक्टिंग दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ये रूट कॉज है, वही रिपोर्ट फिर आपने शेयर की थ्रेट इंटेल के साथ, दे वुड बी लुकिंग इनटू फर्दर सिमिलर टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स के वो गए हैं उसको, फिर उन्होंने देखा है कि ये फलाने ग्रुप की एक्टिविटी थी, दिस वाज लाइक a nation state threat, this was an industry specific threat, specific industry, हर इंडस्ट्री को डिफरेंट थ्रेट्स होते हैं जो फेस करती है, वो ऑयल एंड गैस को डिफरेंट थ्रेट्स होते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस को डिफरेंट होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और जनरल थ्रेट्स दे आर देयर ऑलवेज। तो ये इस तरह गेम चलती है, और फिर उसके पीछे क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज ग्रुप्स होते हैं हैकर्स के, ठीक है, और उन्होंने डिफरेंट नाम दिए होते हैं अपने आप को, कोई फैंसी बियर होता है, कोई जो है वो देयर आर सो मेनी, आई कांट रिमेंबर, बट देयर आर सो मेनी नेम्स, दे हैव क्रेजी टाइप्स ऑफ नेम्स दे हैव गिवन देमसेल्व्स, और फिर उसमें वो ऑपरेट करते हैं। तो वो फिर उससे ये होता है कि दे put down those attacks on the onto some forums, डार्क वेब पे पब्लिश करते हैं, और वहां से पता चलता है कि भी अच्छा जी इन्होंने अटैक किया था, ये इन्होंने या करने वाले हैं, so that sort of things, threat intel teams they work on to that। रूट कॉज एनालिसिस में यही कुछ होता है कि कंडक्ट थ्रू इन्वेस्टिगेशन टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ दैट इंसिडेंट, दिस प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स टू प्रिवेंट फ्यूचर occurrences एंड स्ट्रेंथन सिक्योरिटी measures। इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या होता है, इम्पैक्ट असेसमेंट में वैल्यूएट किया जाता है कि इसका क्या नुकसान हो सकता था, किस किस हद तक इसका
नुकसान हो सकता था हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है, या डेटा लॉस हो सकता था, सिस्टम डाउन हो सकता था, हमारा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हो सकती थी कि फाइनेंशियल लॉस या समथिंग एल्स। एंड रेपुटेशन, सबसे बड़ी जो चीज होती है इंडस्ट्री में चल रही होती है वो है रेपुटेशन, राइट? इफ यू गॉट एन इंसिडेंट, राइट, सो सबसे बड़ा जो उसका इफेक्ट होगा मार्केट शेयर पे तो होगा ही होगा, आपकी रेपुटेशन पे होगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स होंगे दे वुड बी रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी बिकॉज दे नो दैट आपके साथ साथ उनका डेटा भी कंप्रोमाइज हो सकता है, राइट? और शेयर प्राइस वैल्यू जो है उसकी वैसे ही डाउन हो जाती है, फिर इससे ये फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन इम्प्लीकेशंस होती हैं, रेपुटेशनल डैमेज के अंदर ये आती हैं। Data loss, that is another big thing, right, for an organization, for their data loss, system downtime। एक बुकिंग ऑर्डर्स ले रही है कंपनी, वो उसकी चल ही उस पे रहा, अब अगर वो उसका सिस्टम ही डाउन हो जाएगा बुकिंग का, तो इमेजिन in a second or in a minute they would be taking hundreds of orders or thousands of orders, right? एक मिनट के लिए वेबसाइट डाउन है, 1000 orders, और वो भी अगर फाइन मॉनेटरी वैल्यू उसकी देखी जाए इट कुड बी मिलियंस, राइट? So in that's why it says in 1 minute they can lose millions. These sort of organizations, big organizations I'm talking about. So this is how it works, the incident। यहीं पे हम साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करते हैं बोर्ड लेवल पे। वो किस तरह करते हैं कि we would be giving them the measurement of their losses if the cyber incident happens, right? में हम उसको क्वांटिफाई करके देते हैं रिस्क असेसमेंट को उनके सामने प्रेजेंट जब की जाती है, तो रिस्क असेसमेंट प्रेजेंट इस तरह की जाती है कि दिस एंड दिस डाउन टाइम एंड दिस sort of कि अगर इतने डाउन टाइम में होगा दिस एंड दिस वुड बी योर लॉसेस, राइट? एंड this is the budget, right? So if you want to spend this and this much on cyber security measures, and you would be प्रोबेबिलिटी है कि आप उससे कहीं ज्यादा सेव कर लेते हो, ठीक है, आप अपने लॉसेस को बचा लेते हो rather देन कि ये माइनर सी अमाउंट अगर आप इस बजट, पहले साइबर सिक्योरिटी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? बट रीसेंट ईयर्स इट्स गेटिंग मैंडेटरी, अब ये कंपलसरी हो गई है, अब इसको आप लीनियंट नहीं ले सकते, ये गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड ऑल दैट, साइबर इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव, हर लिहाज से इसको कंपलसरी कर दिया गया। यू मस्ट हैव अ साइबर सिक्योरिटी प्लान, यू मस्ट हैव अ साइबर सिक्योरिटी टीम और डिपार्टमेंट वर्किंग टू टायरलेसली टू बेसिकली वर्क ऑन दीज सॉर्ट ऑफ इश्यूज, साइबर सिक्योरिटी को डिफेंस करने में। तो ये इसकी इम्पैक्ट असेसमेंट की जाती है, रूट कॉज एनालिसिस किया जाता है, इंसिडेंट क्लासिफिकेशन की जाती है, और रैपिड डिटेक्शन के बाद। तो इजंट इट इंटरेस्टिंग, राइट, कि कहाँ से क्या कुछ हो रहा होता है, बट हम उसको सिर्फ देख रहे हो। अच्छा साइबर सिक्योरिटी तो है, बट साइबर सिक्योरिटी है क्या जी, क्या हो रहा है कि अंदर खाते बहुत कुछ चल रहा होता है। इट्स काइंड ऑफ अ प्रॉपर प्रोसेस, इट्स अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और ये बहुत सारे डिपार्टमेंट से कनेक्ट होती है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट, गवर्नेंस, कंप्लायंस, ऑडिटिंग, डिजास्टर रिकवरी, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, थ्रेट इंटेलिजेंस एंड ऑल, हर किसी के अपने जो है वो वेज ऑफ वर्किंग है। तो कंटेनमेंट, एरेडिकेशन एंड रिकवरी में बेसिकली आपके पास एक चीज है जो, फर्स्ट स्टेज क्या थी, कंटेनमेंट थी, सेकंड क्या थी, एरेडिकेशन थी, और थर्ड क्या थी, रिकवरी थी। Containment basically implement immediate measures to isolate the affected systems, block malicious traffic, and prevent the further spread of the incident. This limit the damage and buys time for a more thorough investigation and response. तो दो तीन काम तो इसमें आपको पता ही है कि कौन कौन से हो रहे होते हैं। सबसे पहले तो आइसोलेट कर दिया अफेक्टेड सिस्टम्स को, फिर मलिशियस ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया, प्रिवेंट कर दिया फर्दर स्प्रेड को कि आगे स्प्रेड ना कर इंसिडेंट, और उसके बाद उसका डैमेज इतना लिमिट कर दिया कि हमें कुछ और टाइम मिल गया कि हम उसको थॉरो इन्वेस्टिगेट भी कर सकें और उसका रिस्पॉन्स भी दे सकें, राइट? सो दिस इज बेसिकली वन ऑफ द थिंग्स विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, कि एक तो आपको टाइम जो है ना वो बड़ी इसमें वैल्यूएबल चीज है, कि आपको जब टाइम मिल जाता है किसी चीज के लिए देन यू कैन थॉरली इन्वेस्टिगेट, आप पुट डाउन योर हेड इन वन डायरेक्शन, कि आप थोड़ा सा आपको तसल्ली हो जाती है कि बेसिकली अब इंसिडेंट हमने कंटेन कर लिया, इट्स नॉट स्प्रेडिंग इट फर्दर, हमारे पास अब टाइम है कि हम उसको इन्वेस्टिगेट कर। सो कंटेन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज जो है, इंपॉर्टेंट चीज है
why we are repeating all these again and again? Basically these are the important phases within that. So कंटेन करना बहुत जरूरी, सबसे पहले कंटेन, राइट? उसके बाद फिर आप उसको रिकवर करते हो और एडिकेट करते हो, सॉरी, इरेडिकेट। जब आपको टाइम मिल गया, आपने उसमें क्या करना है, फिर आपने देखना है अच्छा क्या आया था, वेदर इसका रूट कॉज क्या था इंसिडेंट का, ठीक है? क्या कोई मॉलवेयर पड़ा हुआ था इसके अंदर, या कोई बैकडोर ओपन हुआ हुआ है जहां से आपका डाटा लीक हुए जा रहा है? क्योंकि बैकडोर वो चीज होती है कि जो इंतहाई खतरनाक है, कि जब कोई हैकर पेनिट्रेट करता है सिस्टम के अंदर, तो वहां पे वो बैकडोर बना देता है। बैकडोर इसलिए इसको कहा जाता है कि बेसिकली विदाउट योर नॉलेज आपका डेटा पीछे से जा रहा होता है, निकल रहा होता है, मतलब उसको कंटिन्यूअसली बेसिकली ये एक ओपन हो जाता है, 6 महीने पड़ा है, साल पड़ा है, एंड इट्स व्हाट योर एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग इट्स जस्ट गोइंग थ्रू, एंड इन malicious sort of malicious sectors के पास आपकी वो सारी चीजें जा रही होती हैं। तो ये चेक किया जाता है कि कोई मालवेयर है, बैकडोर था, या कोई अदर malicious elements from affected systems, ठीक है, या कोई और malicious elements थे affected system से जुड़े हुए। This ensures the threat has been fully eliminated and the organization can move to the recovery phase. तो ये eradication इसलिए की जाती है कि ताकि आप दोबारा सिस्टम को जब कनेक्ट करोगे, ताकि आपको ये श्योरिटी हो कि ये चीज दोबारा नहीं होगी, या अब ये स्मूथ ऑपरेशन के लिए इस काबिल हो गया है कि अब ये स्मूथ ऑपरेशन पे रिकवरी की तरफ जा सकता है, इसको हम दोबारा अटैच कर सकते हैं इफ वी हैव रिमूव दैट फ्रॉम दैट मशीन। Recovery may restore the normal operations by bringing systems back online, recovering any lost data, and verifying the integrity of the system. सिस्टम की इंटेग्रिटी बहुत जरूरी है। किस चीज पे सिक्योरिटी बेस कर रही होती है? 3 चीजों पे, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है? इंसिडेंट होता है, अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है, कॉन्फिडेंशियलिटी चली जाती है, इंटेग्रिटी इसकी खतरे में पड़ जाती है। तो इंटेग्रिटी बेसिकली कि मैनिपुलेट तो नहीं हुआ कोई डेटा, कोई चीज कोई छेड़ा-छाड़ी की हो, कोई बेसिकली कोई आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स हो जिनको मैनिपुलेट कर दिया गया हो जो फर्दर डैमेज। तो ये सारी चीजें एरेडिकेशन में देखी जाती हैं पहले। तो बेसिकली उसके बाद उसको जब रिकवर किया जाता है, सो वी वांना मेक श्योर कि हमने एक तो अपना बैकअप से डाटा निकाल लिया है और हम इसकी सिस्टम की इंटेग्रिटी को बहाल कर दिया हमने, कि नथिंग हैज बीन चेंज्ड और इट्स गोना चेंज, सो एवरीथिंग इज as it is, what it should be or what it used to be. So ensure that all affected areas are functioning securely and that no residual threat remains. Residual ये होता है कि जो उसके रिमेन्स होते हैं, या कोई ऐसी चीज रह जाए, कोई लिंक्ड चीज हो, ठीक है, अगर तो किसी और फाइल से लिंक, तो पूरे सिस्टम को स्कैन करके, पूरे सिस्टम को रिकवर करके और हर तरीके से तसल्ली करके, दैट इज आवर रिकवरी एक्शन, सो दैट द सिस्टम इज रिस्टोर्ड नाउ। सो दिस इज हाउ वी कंडक्ट द इंसिडेंट मैनेजमेंट, containment, eradication, and the recovery phases of it. Right? Let's move forward. Okay. पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं? उसमें लेसन लर्न होता है, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग होती है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती है, कम्युनिकेशन एंड नोटिफिकेशन। अब हम इन चारों चीजों को डिटेल में देखते हैं। लेसन लर्न, मैंने बार बार कहा है, लेसन लर्न क्या होता है? लेसन लर्न, तो लेसन लर्न बेसिकली कंडक्ट अ थॉरो रिव्यू ऑफ द इंसिडेंट, कि इंसिडेंट कैसे हुआ था, इंसिडेंट में क्या क्या चीजें थी, किस किस ने क्या रोल प्ले किया, और किस तरह उसको कंटेन किया, किस तरह रेडिकेट किया, किस तरह रिकवर किया, ये सारी चीजें, और वो सारी जितनी की फाइंडिंग्स थी उसको हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, ठीक है? एंड देन व्हाट वी डू इज वी लुक इनटू द चैलेंजेस, कि हमें क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़े इसके अंदर, क्या क्या मसले मसाइल आए, और कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं फॉर फर्दर सॉर्ट ऑफ मिटिगेशन, कि दोबारा अगर कुछ हो तो। This enables the organization to learn from the experience and strengthen its overall security posture.
तो एक्सपीरियंस से लर्न भी किया और स्ट्रेंथन भी किया सिक्योरिटी पोस्चर को। तो डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग बहुत जरूरी होती है। डॉक्यूमेंटेशन वैसे भी बहुत जरूरी है। यू आर लर्निंग दिस, यू आर, आई एम श्योर यू आर टेकिंग नोट्स हियर एंड देयर। तो डॉक्यूमेंट करने से एक तो ये फायदा होता है कि एक तो रिकॉर्ड होता है आपके पास, ठीक है। देन सेकंड थिंग इज यू वुड बी काइंड ऑफ मैनेज इट इफेक्टिवली। आप उसको अच्छी तरीके से इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो, उस पूरे प्रोजेक्ट को, उस पूरे लर्निंग फेज को, ठीक है। तो जब आप लिखते हो बेसिकली यू आर एब्जॉर्बिंग इट इनसाइड योर हेड, बेसिकली आपको उससे ज्यादा सीखने को मिलता है अगर हम रादर देन जस्ट लिसनिंग और वॉचिंग। इसी तरह हाँ, लिसन करने से ज्यादा वॉचिंग पे होता है, ठीक है। वॉचिंग से फिर उससे ज्यादा होता है लिखने पे। तो ये सारी चीजें मैटर करती, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन इज ऑलवेज, स्पेशली इन केसेस में, इंसिडेंट्स में और इंडस्ट्री लेवल, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप डेवऑप्स में हो, चाहे आप किसी उसमें हो, यू स्टिल हैव टू डू द डॉक्यूमेंटेशन, आई एम श्योर। और रिपोर्टिंग, इसी तरह रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स भी जनरेट होती हैं, बट यू कैन मैनुअली जनरेट द रिपोर्ट्स, जिसमें आपकी कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन होती है इंसिडेंट रिस्पांस प्रोसेस की। टाइमलाइंस होती हैं, कितने टाइम पे क्या किया गया था, कितने टाइम पे, वो सारी टाइमलाइंस डिफाइन की जाती हैं। कौन कौन से एक्शंस लिए थे, क्या क्या उसके आउटकम्स क्या निकले थे। एंड इज, और ये रेगुलेटरी कंप्लाइंस के लिए भी जरूरी होती है, क्योंकि कल को ऑडिट आता है आपके पास, साइबर सिक्योरिटी का ऑडिट होता है, बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का ऑडिट होता है। उसमें सारी असेसमेंट की जाती है, आपकी रिपोर्टिंग भी चेक की जाती है, इंसिडेंट्स भी चेक किए जाते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी चेक की, उसके लिए बहुत जरूरी होती है। तो वी हैव टू कीप अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। लाइबिलिटी मैनेजमेंट के केसेस में भी ये चीज काम आती है, ठीक है। लीगल केसेस में भी ये काम आ जाती है। और एंड इंस्टीट्यूशनल नॉलेज और फॉरेन नॉलेज पर्पस के लिए आपने फर्दर एम्प्लॉयज को अपने ट्रेन करना है, फर्दर एनालिस्ट को ट्रेन करना है, तो ये उस चीज के लिए भी काम आती है। सो डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग आर द बेसिक एलिमेंट्स फॉर दैट एज वेल, फॉर द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट जी। तो इससे क्या होता है कि लेवरेज द इनसाइट गेन फ्रॉम द इंसिडेंट टू अपडेट इंसिडेंट रिस्पांस प्लान्स। तो इसको हम क्या करते हैं कि यही जो इंफॉर्मेशन हमने गेन की है ना अपने इंसिडेंट से, हम इन अपने इंसिडेंट रिस्पांस प्लान हम ड्राफ्ट कर लेते हैं अपना, उसको लेके चलते हैं। इनहांस सिक्योरिटी कंट्रोल्स, प्रोवाइड एडिशनल ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंट प्रोएक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट सिमिलर इंसिडेंट्स इन द फ्यूचर। और इसी तरह हम सिमिलर इंसिडेंट्स को भी वो कर सकते हैं। Just give me a minute. Let me fetch a glass of water. Just give me a minute, please. No. ओके जी। तो इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो गई, कम्युनिकेशन एंड नोटिफिकेशन। तो वी एंगेज इन ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन विद रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स। मैंने क्या कहा था कि डिफरेंट टीम्स को हमने एंगेज किया, उसके साथ हमने फिर कम्युनिकेट किया, नोटिफिकेशन, उनको रिपोर्ट सबमिट करवाई, उनको टू फर्दर बेसिकली मॉनिटर और इम्प्रूव द प्रोसेसेस। इसमें इंसिडेंट मैनेजमेंट भी थी, गवर्नेंस टीम टीम भी थी, गवर्नेंस एंड कंप्लायंस, उसमें थ्रेट इंटेलिजेंस टीम्स भी थी, रिस्क मैनेजमेंट टीम्स भी थी। तो so we kind of share those sort of communication around them। और उसमें कस्टमर्स भी हैं, पार्टनर्स भी हैं, रेगुलेटरी बॉडीज भी हैं, टू एड्रेस दोस कंसर्न्स, मेंटेन ट्रस्ट, ताकि हम उनका ट्रस्ट भी गेन कर सकें, मेंटेन रख सकें, और फुलफिल एनी लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। कुछ लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट्स में ये भी होता है कि यू हैव टू डिक्लेयर योर इंसिडेंट एक्टिविटीज एंड हाउ डिड यू कोप अप विद दैट इंसिडेंट एंड ऑल दैट। एज आई सेड कि इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करना पड़ता है विद इन सेट टाइम ऑफ फ्रेम, अदरवाइज यू वुड बी फेसिंग और लायबल फॉर हाई फाइन्स। तो उससे बचने के लिए भी ये चीजें की जाती हैं। सो देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस टू इट। अच्छा, सो डिजास्टर रिकवरी फंडामेंटल्स, कम वी विल कम बैक टू दैट इंसिडेंट, बट अभी हम एक और चीज जो शुरू में मैंने मेंशन की थी कि एक और चीज भी होती है इंसिडेंट्स के अलावा, डिजास्टर रिकवरी भी होती है कोई चीज। डिजास्टर रिकवरी जनरली क्या होती है, थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करें। एज अ नेम सजेस्ट, कोई डिजास्टर हो गया, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर था, चाहे वो मलिशियस एक्टर ने अटैक किया था, या साइबर अटैक हो गया जी, दीज आर ऑल डिजास्टर्स, राइट। डिजास्टर हुआ, बिजनेस डाउन हुआ, यू गेट टुगेदर, यू पुट योर हेड्स डाउन टुगेदर, उसमें फिर आपने देखा कि इसको कैसे। अब वो स्टेज ऐसी होती है कि वहां पे सोचना नहीं होता, आपने पहले से प्रिपेयर किया होता है,
ठीक है, हर चीज का। I work for an organization there. What they do is every uh, 2 weeks or a month, they do the simulation activities. Exactly same के जैसे वाकई में कुछ हो गया, right? They give the short notices. एक सिटी ऑफिस से उठ के आपने किसी रिमोट लोकेशन पे जाना है, ठीक है, और वहां पे आपका बेसिकली डेटा सेंटर है। वहीं पे आपका सारा सिस्टम्स एंड ऑफिसेज बना दिए जाते हैं। हाँ, वो जाहिर बात है वो वैसे नहीं होते जो नॉर्मल आपके ऑफिसेज या फंक्शनिंग एनवायरनमेंट आपका होता है, लेकिन वो क्या होता है कि इस हद तक होता है या इस लेवल तक होता है कि आप अपना काम चला सको, बेसिकली ऑपरेशंस रन कर सको। जहां आपके 10 सिस्टम पड़े होंगे, उन्होंने वहां पे उठा के एक सिस्टम रख देना है। जहां बड़ा हाई फाई बनाया होगा, उन्होंने वहां पे बेसिक नेसेसिटीज रख देनी है जी, ये कॉफी स्टेशन है या जी जो भी है आपका फैसिलिटीज हैं ये सारी आपने उसकी मतलब। लेकिन वो क्या है कि दे गिव यू एन काइंड ऑफ एन इम्प्रेशन कि जी आप कल को ऐसा कुछ होता है डिजास्टर, आपने इसी तरह उठ के आ जाना है, इसी तरह जिस तरह अब यहाँ पे आप लोग आ रहे हो। तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, डिफरेंट टीम्स को डिफरेंट टाइमिंग्स में बुलाया जाता है वहां पे, उनसे वहां बैठ के काम करवाया जाता है टू कीप दैट प्लेस अप एंड रनिंग। उसको क्या बोलते हैं, हॉट साइट्स कहते हैं, कुछ कुछ होती हैं कोल्ड साइट्स। उसके भी बहुत सारे डिफरेंस, मतलब अगर आप ये डिजास्टर रिकवरी एक कितना बड़ा सब्जेक्ट है ना, अगर आप इसको उठा लो तो इसके अंदर फिर फर्दर इतनी इंफॉर्मेशन है कि उसकी डिजास्टर रिकवरी को प्लान कैसे, साइट्स को कैसे बनाया जाता है, डाटा सेंटर्स को कैसे बनाया जाता है। ये डाटा सेंटर भी आपकी बेसिकली ये डिजास्टर रिकवरी साइट्स हैं ये सारी। जो डाटा सेंटर है इसका पर्पस, बेसिकली मेन पर्पस, ये जो डाटा सेंटर का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ था, ये यहीं से तो शुरू हुआ था, ये डिजास्टर रिकवरी से। अब ये डाटा सेंटर जनाब, उसमें डाटा आपका सारा वहीं पे सेव हो रहा है आपके, क्योंकि ये सेफ लोकेशंस होती हैं, इनके साथ दो दो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स जुड़ी होती हैं, इनके अपने जनरेटर रूम्स होते हैं बड़े बड़े, और प्रॉपर आयरन वॉल्ड किया होता है, इनको इतना गार्ड किया होता है, इनको इतना हैवीली। फिर इसके बाद इसको जो है हर लिहाज से इस तरह प्लान किया होता है कि दुनिया हिल जाए लेकिन ये जगह अपनी जगह पे खड़ी रहे। खैर ट्रुथ भी कहने को तो ठीक है, बट ये है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होती है। तो उस डेटा सेंटर का भी बैकअप होता है फिर, मजे की बात उसका भी बैकअप। और ये ऐसी लोकेशंस होती हैं कि अननोन लोकेशन, मैं काम करता हूँ मुझे लोकेशन पता है, बट दे नॉट गोना डिस्क्लोज इट टू एनी एनी अदर पर्सन, राइट? तो गूगल का अपना है, फेसबुक का अपना है, हर जगह हर किसी के अपने अपने डाटा सेंटर्स हैं जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है आपके उनके सर्वर्स पे, और सर्वर्स वहीं पे स्टोर होते हैं, उनका स्टोरेज सर्वर वहीं होता है डाटा सेंटर्स में। अच्छा, उसके बाद जी ये जो बात हो रही थी इसकी डिजास्टर रिकवरी की, तो फिर वो सिमुलेशन एक्टिविटीज जब करवाते हैं ना कि यहाँ से उठ के आपने वहां जाना है, वहां पे आपका जो है वो इसी तरह एक्टिविटी जैसे कि कोई डिजास्टर हो गया है, तो जब एक्चुअल में होता है तो आपको पता होता है आपने क्या करना है, ठीक है। आपको एक कॉल जानी है या आपको पता है डिजास्टर हो, देन यू नीड टू जो, और ये उनके लिए होता है जो बहुत क्रिटिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ बैंक, बैंक में यही होता था कि आपके क्रिटिकल, जाहिर बात है उनकी ट्रेडिंग चल रही है, उनकी जनाब बड़ी आई इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई है, म्यूचुअल फंड जनाब, प्राइवेट फंड्स एंड दिस एंड दैट। तो इमेजिन कि आपके कंपटीटर्स भी हैं, फिर आपकी जो है, अब जस्ट इन केस आप बैठ जाते हो और आप वहां ऑपरेशन नहीं कर सकते, ट्रेडिंग खत्म आपकी, तो आप तो गए, आपका तो बिजनेस गया ना। सो दैट्स व्हाई दे हैवीली इन्वेस्ट ऑन दीज थिंग्स, ताकि कल को कुछ होता भी है तो वी नॉट गोना गेट डाउन, ठीक है। एक साइड ही डाउन होगी ना, हम तो नहीं पूरे के पूरे तबाह हो जाएंगे। बेसिकली उनके ऑपरेशंस चलते रहते हैं, उनकी ट्रेडिंग, उनके फंड्स एलोकेशन, दिस एंड दैट, हर चीज उनकी। और ये क्रिटिकल जो फंक्शंस होते हैं ना उनको बैठाया जाता है वहां पे, उनकी ट्रेनिंग्स करवाई जाती है कि क्रिटिकल फंक्शंस बंद नहीं होने चाहिए, सिक्योरिटी और ये ऑपरेशंस आपके बंद नहीं होने चाहिए, उनमें सिक्योरिटी भी एक चीज है, ठीक है। बिजनेस कंटिन्यूटी आपकी चलती रहनी, तीन तीन चीजें हैं ना, कि एक तो आपको सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने जो पिक्चर में देख रहे हो पहली पिक्चर, ये बेसिकली डाटा सेंटर की एक वो है इमेज, ठीक है। अब ये सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देते हैं कि भाई वहां पे आपके जो है फंक्शंस चलते रहे।
कंप्रिहेंसिव प्लानिंग की जाती है, टीम्स पहले से इस पे प्लान कर रही होती हैं। डिजास्टर रिकवरी के डायरेक्टर अलहदा होते हैं, इसके मैनेजर्स अलहदा होते हैं, उनका काम ही यही होता है कि सारा साल इन्होंने सिर्फ डिजास्टर रिकवरी या बिजनेस कंटिन्यूटी पे फोकस करना है। अब इमेजिन कि कितना उसका एक्सपेंस होगा या कितनी उस पे अटेंशन दी जा रही होती है। उसकी रीजंस यही हैं कि अगेन योर operations एंड योर डेटा इज द मोर इम्पोर्टेंट टू यू एज पर योर बिजनेस क्रिटिकलिटी। बिजनेस कंटिन्यूटी को हमने जारी रखना है। So secure infrastructure is basically ensures critical infrastructure such as data centers, network equipment, and designed and configured to maintain availability and safeguard against disruptions. वही आ गई ना, CIA ट्राइड आ गया फिर से, अवेलेबिलिटी आ गई कि ये जो चीज है आपकी, ये बेसिकली आपको क्या दे रही है डेटा सेंटर या आपकी सिक्योर फैसिलिटी। ये आपको बेसिकली आपको क्या, आपका डेटा को सिक्योर रखा हुआ है इसने, और उसकी अवेलेबिलिटी आपकी चल रही है कि यहाँ पे कोई मिसहैप नहीं होगा, कुछ नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन नहीं आपका होने लगा, कोई डिजास्टर नहीं होने लगा, आपका डेटा अप एंड रनिंग, अवेलेबिलिटी आपकी चलती रहेगी। ठीक है, और इस तरह इसी को डिजाइन भी ऐसे ही किया जाता है। इसमें जो नेटवर्क इक्विपमेंट होता है वो इसी हिसाब से उन्होंने डिजाइन किया होता है। नीचे जो फ्लोर होता है इसके नीचे भी एयर वेंटिलेशन होती है, कूलिंग सिस्टम्स चल रहे होते हैं, फिर इसके अंदर स्प्रिंकल्स, फायर स्प्रिंकल्स लगे होते हैं। अब मैं मतलब अब डाटा सेंटर की उस पर तो नहीं आऊंगा, लेकिन ये डाटा सेंटर इटसेल्फ अब ये भी एक अलग एरिया है, ये एक अलग फील्ड है जो बहुत तेजी से इवॉल्व कर रही है। तो ये इसमें डाटा सेंटर मैनेजमेंट अलहदा होती है। ठीक है, उनका काम ही यही होता है कि आज ये काम यहाँ पे हो रहा है जी, कॉन्ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, उनको कैसे डील करना है, इसकी जो डेटा सेंटर की मेजरमेंट्स, उसकी कूलिंग सिस्टम्स, उसके अंदर जो बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के सिस्टम्स लगे होते हैं, ये कूलिंग, फायर स्प्रिंकलर्स वगैरह। सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो फायर का होता है कि फायर ना, फिर उसके अलावा उन्होंने वो स्प्रिंकलर्स ऐसे होते हैं कि फिर वो पानी वाले नहीं होते, बिकॉज if you imagine you would be throwing water on these servers and electrical equipment, तो वो तो आप मतलब उसके साथ गलत कर रहे हैं। that would be again another disaster within a disaster recovery site। तो वो एक specific whether it would be electrical suppression systems और ये fire suppression systems अलग टाइप के होते हैं वो। फिर इसके अलावा उसके अंदर जो आपका एक सर्टेन किस्म का टेम्परेचर उन्हें मेंटेन रखना होता है। ठीक है, ज्यादा हॉट नहीं वो हो, ज्यादा कूल डाउन भी ना हो जाए। फिर इसको वो बड़े एक उसके अपने कंट्रोल रूम्स होते हैं जिसमें वो सारा चल रहा होता है। मतलब यहाँ पर कह लो कि इंजीनियर्स बैठते हैं सारे, जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड ऑल दी सॉर्ट ऑफ, वो मेंटेन उसको कर रहे होते हैं 24 घंटे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर साइट्स होती हैं डाटा सेंटर की सूरत में। कंप्रिहेंसिव प्लानिंग इसकी होती है जी, डेवलप किया जाता है एक पूरा प्लान जिसमें कि हायर मैनेजमेंट को भी लिया जाता है ताकि उसका एक इन्फ्लुएंस बरकरार रहे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं लोअर मैनेजमेंट में, वो उसको चैलेंज भी कर देते हैं, वो इतना लिसन भी नहीं करते, कुछ पॉलिटिक्स भी चल रही होती है, बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए कोशिश की जाती है कि सीसओ को इन्वॉल्व किया जाए या सीईओ के थ्रू उसको जो है इम्प्लीमेंट करवाया जाता है पूरा एक कम्प्रिहेंसिव प्लान जो है ये डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस कंटिन्यूटी का, सो दैट इट वुड इट वर्स इट वेट्स बेसिकली, उसके अंदर इतना वेटेज रखा जाता है कि किसी ऐसे बंदे को इन्वॉल्व करके। तो ये भी एक उसकी पॉलिसी है। तो that would develop a robust disaster recovery plan that outlines the procedure, responsibility, and resources required to quickly restore operations in the event of a disaster। और वो सारे प्लान में होता क्या है? वो सारे प्लान में यही होता है कि जी आपके सिस्टम अप एंड रनिंग हो जाए फौरन। ठीक है, उसमें आपको वेट ना करना पड़े बेसिकली कि कुछ होता है तो आप बैठे, वो ये अगेन बात आ जाती है कि आप बैठे रह जाते हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने उसको फौरी तौर पे उसको मिटिगेट करना है, उसको हर चीज को आपको पहले से पता होता है कि हमने प्लान किया हो, कोई चीज प्लान की हो ना। खैर समटाइम्स फॉर मी व्हेन यू प्लान इट इट नेवर वर्क एंड स्पॉन्टेनियस थिंग्स फॉर मी, बट पर्सनल लेवल पे बात कर रहा हूँ। बट दिस इज समथिंग विच यू गॉट टू प्लान, इसको पूरा प्लान किया जाता है तो आपको कोई शॉक या सरप्राइज नहीं मिलता, बिकॉज
अल्टीमेटली आपने क्या चीज देखनी है, अपनी बिजनेस कंटिन्यूटी देखनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यू डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम योर बिजनेस कंटिन्यूटी। इम्प्लीमेंट करते हैं जी आप अपने बिजनेस कंटिन्यूटी स्ट्रेटेजी को, मेंटेन एसेंशियल बिजनेस फंक्शंस एंड मिनिमाइज डाउन टाइम। जितना भी हो सकता है ना डाउन टाइम मिनिमाइज किया जाए। तो इमेजिन कि एक साइड खत्म हो गई है, ठीक है, डिस्टर्ब हो गई है, वो उठने में, बनाने में, दोबारा सारे सिस्टम को खड़ा करने में, लोगों को इकट्ठा कर कितना टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आपके पास डाटा सेंटर पहले से पड़ा हुआ है, आपने पहले से ट्रेनिंग्स करवाई हुई है, पहले से रिहर्सल्स करवाई हुई है, आपने सिर्फ एक कॉल देनी है और विद इन मिनट्स और विद इन एन आवर और वहां पे सारा आपका फिर से शुरू हो जाए। तो डाउन टाइम आपका कितना हो गया, मिनिमम होगा। अब आजकल तो जो जो पूरी हॉट साइट्स होती हैं, पूरी फुली रेडी साइट्स होती हैं, जिस तरह मैंने भी एक एग्जांपल दिया आपको, ये फुल हॉट साइट है, ये कोल्ड साइट नहीं है, या वार्म साइट नहीं है, ये डिफरेंट साइट्स होती हैं। वार्म साइट्स में कुछ इक्विपमेंट लगा दिया होता है लेकिन उसमें टाइम लगता है दोबारा से। कोल्ड साइट्स बिल्कुल उसमें वाकई में बहुत सारा टाइम लगता है। लेकिन जो हॉट साइट्स हैं वो अप एंड स्ट्रेट अवे, वहां खत्म हुई तो यहाँ चालू हो गई, मतलब वो हर विद इन सेकेंड्स, मतलब उसमें कह लें कि आप, so that's how it works, that's how it is so effective। तो आपने अपने डाउन टाइम को मिनिमाइज करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंटिन्यू ऑपरेट कर सके इवन ड्यूरिंग अ क्राइसिस। और ये क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर आता है। ये टीम्स किसके अंदर आती हैं? हर बिजनेस के अंदर एक क्राइसिस मैनेजमेंट होता है। ये उसके क्राइसिस मैनेजमेंट के अंडर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक होता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। सो दे डू ट्रेन ऑन द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, लेकिन वो सिक्योरिटी में होता है कि आपने कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करना है। आई यूज्ड टू हैव अ ट्रेनिंग, मैं जाया करता था वहाँ पे व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन द सिटी। तो उधर हमें सिटी पुलिस ने हमें करवाई थी, उसमें सारा ये जो है सब करवाया था, बम डिस्पोजल और ये सारा जो बिजनेस कंटिन्यूटी और जो इसके अलावा जो है क्राइसिस मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और ऑल सी सॉर्ट ऑफ थिंग। तो बेसिकली ये जो है फोर्स लेवल पे भी ये चीजें करवाई जाती हैं, एंड इट्स क्वाइट कॉमन। सो एंड इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट बेसिकली। बैकअप एंड रिस्टोरेशन। अच्छा, बैकअप में जो है आपके कई तरह के बैकअप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव बैकअप, बेसिकली ये कंप्लीट बैकअप होता है, इसके बाद कोई बैकअप नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने जो है एक रिजीम बनाते हो, एक पूरा स्केड्यूल बनाते हो जिसके अंदर आप अपने जितने फुल सिस्टम के इमेजेस है ना उसको आप बैकअप करते हो, क्रिटिकल डाटा को बैकअप करते हो, अपनी इवन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को भी बैकअप कर लेते हो, ठीक है। और आप इंश्योर करते हो कि ये बैकअप्स किसी सिक्योर साइट पे रखी जाए। मैंने पहले बताया था कि सिर्फ सिक्योर साइट पे रिलाई नहीं किया जाता बल्कि उसको क्लाउड पे भी बैकअप किया जाता है, दो दो डबल डबल बैकअप रखे जाते हैं। हमारे पास पूरी एक बैकअप लाइब्रेरी होती थी, ठीक है। उस बैकअप लाइब्रेरी में रोबोट्स काम कर रहे होते थे, बेसिकली वो एक कमरे के साइज की एक वो लाइब्रेरी होती थी। और रोबोट्स जो हैं वो बेसिकली एक डिस्क निकाल रहे हैं, दूसरी लगा रहे हैं, दूसरी निकाल रहे हैं, तीसरी लगा, वो सारा वो बैकअप चल रहा होता था। दिस इज क्वाइट ऑटोमेटिव, क्वाइट क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो वो ये होता था कि फलानी जगह से बैकअप आ रहा है, ये डिस्क फुल हो गई है, इसको निकाल के उन्होंने इधर रख दी, उसकी जगह दूसरी डिस्क लगा दी। अब वो कंटिन्यूअसली यही काम कर रहे हैं। इमेजिन हाउ बिग दैट डेटा वुड बी, ठीक है। वो खैर ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत बड़ी थी, तो अकॉर्डिंगली फिर उनका डेटा भी इसी तरह ही हो रहा था। तो दे काइंड ऑफ कि वो डेटा को इतनी उन्होंने हैविली इन्वेस्ट की थी इस टेक्नोलॉजी पे कि वो बंदों पे रिलाई नहीं कर रहे थे, दे वर रिलाइंग ऑन दोज सॉर्ट ऑफ अ रोबोटिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। वो पूरी एक लाइब्रेरी थी डिस्क की, जिधर से डिस्क फुल होती है उधर से निकाल के उसने, और वो फिर वो जो डिस्क फुल हो जाती थी, दे टेक इट, फिर उसकी कलेक्शन डिलीवर आती थी और वो फिर उसमें एक सिक्योर वैन में उसको ले जाके किसी सेफ साइट पे जाके वहां पे फर्दर उसको सिक्योर कर दिया जाता था कि ये बैकअप। और वो फिर उसकी बैकअप स्ट्रेटजी, बैकअप की पॉलिसीज होती हैं कि आपने इस बैकअप को कब डिस्ट्रॉय करना है, कितनी देर तक आप बैकअप रख सकते हो, ठीक है। ये जीडीपीआर रेगुलेशंस में भी, आपके डाटा जो रेगुलेशंस हैं उसके अंदर भी ये चीज आ जाती है कि बैक आपने जो अपना डाटा है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर सकते हो, कहाँ कहाँ आप इस डाटा को स्टोर कर सकते हो, कितने टाइम के लिए आप स्टोर कर सकते हो अगर उसमें क्लाइंट्स का डाटा हो तो। सो दिस इज हाउ ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। तो कंप्रीहेंसिव बैकअप्स उसके बनाए जाते हैं, उसको इंश्योर किया जाता है कि दोनों जगह पे सिक्योरली स्टोर कर दिया जाए। दूसरी चीज होती है कि वेरीफाइड रिस्टोरेशंस।
तो वेरीफाइड रिस्टोरेशन में क्या होता है कि रेगुलरली टेस्ट द रिस्टोर प्रोसेस टू वैलिडेट द इंटेग्रिटी एंड रिकवरेबिलिटी ऑफ बैकअप्स। अब उसकी जो इंटेग्रिटी को भी चेक किया जाता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल रिस्टोर कर रहे हो बैकअप से, तो आप उसके, जिस तरह अब एग्जांपल देता हूँ मैं, एक फाइल है, दो फाइल्स हैं, आप उसका MD5 जो मैंने क्रिप्टोग्राफी में पढ़ाया था कि उसका एक चेकसम होता है फाइल का, उसकी इंटेग्रिटी चेक की जाती है। दोनों फाइल के हैशेस को मैच किया जाता है। अगर वो डिफरेंट हैश आ जाए दूसरी का, तो दैट मीन्स कि फाइल कंप्रोमाइज हुई है, कहीं ना कहीं उसके अंदर बिट्स में चेंजिंग हुई है। इवन के एक बिट भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अब वो डाटा की जब आप रिस्टोर करते हो तो उसकी इंटेग्रिटी चेक की जाती है, ठीक है। और कि वो रिकवरेबल भी है कि नहीं है, वेदर इट्स टू ओल्ड, वेदर इट्स नॉट रियली काइंड ऑफ उसके साथ वो अलाइन नहीं कर रहा, या फिर उसकी इंटेग्रिटी वेदर इट वुड बी सेफ, और ताकि वो उसको रिस्टोर करने के काबिल बना सो वो उसकी रिस्टोरेशन की उसको वेरीफाई किया जाता है। दिस एंश्योर्स द बैकअप सॉल्यूशन विल वर्क एज इंटेंडेड ड्यूरिंग अ डिजास्टर। ये कंटिन्यूसली क्यों चेक किया जा रहा होता है बैकअप्स को, कि कहीं ऐसा ना हो कि डिजास्टर हो जाए और आप बैकअप्स रिस्टोर करने लगो तो बैकअप्स भी आपके फारिग हुए हो। तो इसीलिए बैकअप्स को कंटिन्यूसली टेस्ट किया जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है कि वो एक अच्छी स्टेट में रहे बेसिकली। एक तो इंटेग्रिटी मेंटेन रहे बैकअप्स की, उसमें कोई चेंजिंग ना करे, और दूसरा ये कि बैकअप्स का यूजेबिलिटी उसकी मेंटेन रहे, कि वो यूजेबल हो सके, दोबारा हम बैकअप को अपना वहीं से चला सकें। तो ये भी एक उसमें फंक्शन है। अब लुक एट दैट, द डेप्थ ऑफ इट, कि अब उसको ये छोड़ा नहीं जा रहा कि ठीक है जी बैकअप पड़ा लगा लेंगे, नहीं, बैकअप को भी टेस्ट किया जा रहा है इवन। तो हाउ इम्पोर्टेंट द डेटा इज, यहाँ से किस चीज की इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो रहा है आपको डेटा की, कि डेटा इतना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो पर्सनल लेवल पे हम डेटा को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन डेटा डेटा है। आपका डेटा कहीं, ये जितना भी डेटा इधर उधर आप दे रहे हो ऑनलाइन, ये सब स्टोर इसकी, ये आपके क्या हैं, ये आपके फुटप्रिंट्स हैं बेसिकली। ये जहां जहां आप जा रहे हो फुटप्रिंट स्टोर हो रहे हैं, डेटाबेसेस भरी जा रहे हैं, गूगल पे जा रहे हो तो उसका डेटाबेस भरी जा रहा है, फेसबुक यूज कर रहे हो उसका डाटा, और उतनी ही डाटा की स्टोरेज फैसिलिटी की शॉर्टेजेस होती जा रही हैं। अब फेसबुक का एक था, 10 हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए। दे कीप ऑन इंक्रीजिंग देयर डेटा सेंटर रीजंस, कि डाटा बढ़ रहा है, लोग उस पे ज्यादा इंटरेक्ट करने लग गए हैं। सबसे बड़ा रिस्क फिर किस चीज का बन जाता है, सबसे बड़ी रिस्क साइबर सिक्योरिटी बन जाती है आके। डेटा थेफ्ट इज द वेरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम नाउ। डेटा थेफ्ट, डेटा डिजास्टर, और उसके अलावा जो है आपका ये अटैक्स ऑन दैट डेटा। सो दिस इज अनदर थिंग, राइट। तो अब बेसिकली अब ये चीज आ जाती है कि आपको ये सारी चीजें माइंड में रखनी है, कि बेसिकली डाटा अगर हम पढ़ रहे हैं, डिजास्टर रिकवरी पढ़ रहे हैं, हम इंसिडेंट मैनेजमेंट, तो क्या मकसद क्या है भाई, किस चीज के इर्द गिर्द ये सारी चीजें घूम रही है, घूम ही इस चीज के इर्द गिर्द रही है। ये सारा डाटा को प्रोटेक्ट करने, डाटा को स्टोर करने, डाटा को रिकवर करने, उसी लिहाज से बिजनेस को अप एंड रन करने के अगेंस्ट ये सारी चीजें चल रही हैं। फिर आती है डाइवर्स रिकवरी ऑप्शंस। अब इसमें रिकवरी ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, कि we maintain a variety of recovery methods from bare metal restores to virtualized environments to provide flexibility and adaptability in the face of different disaster scenarios. अब उसमें एज आई सेड के डिफरेंट जो हैं वो रिकवरी के मेथड्स होते हैं, जिसमें कोल्ड साइट्स, हॉट साइट्स एंड डी साइट्स भी बनाई होती है। इसके अलावा बेयर मेटल रिस्टोर्स जो अब ट्रेडिशनल होता है कि जी आपने ये हार्ड ड्राइव से आपने उसको या किसी फैसिलिटी से जाके अपना डेटा दोबारा से वहां से आपने अपना बिजनेस को ऑपरेट करना शुरू कर दिया, या बैकअप आपने उठाया और लगा के दोबारा आपने रिस्टोर कर लिया, या वर्चुअलाइज जैसे क्लाउड्स कह लें, या कहीं आपका डेटा पड़ा हुआ है तो वहां से आपने दोबारा से वहीं से फंक्शन करना शुरू कर दिया। अजूर पे था, AWS पे पड़ा हुआ था, ठीक है, और एनी अदर। तो टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी इन द फेस ऑफ डिफरेंट डिजास्टर। खैर ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस की वजह से ये सारा जो है आपको उतनी ही हेडेक, बेसिकली उतनी इजी इजी भी हो रहा होता जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ज्यादा रिसोर्स कंजम्पशन आपकी बढ़ती जा रही है, आपकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। अब उनको डाटा को मेंटेन करना कोई इजी तो नहीं है, इट्स नॉट अ कॉस्ट इफेक्टिव, बेसिकली कॉस्ट उसी तरीके से इंक्रीज होती जा रही है to maintain that data, to store that data, to create the disaster recovery sites, to create the backups, to create the verify those restorations and all that.
फिर चौथी चीज उसमें आ जाती है डेटा बैकअप एंड रिस्टोरेशन स्ट्रेटेजीज में कि ऑटोमेटेड वर्क फ्लोज। अब ऑटोमेटेड बैकअप एंड रिकवरी वर्क फ्लोज टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, रिड्यूस ह्यूमन एरर एंड एनेबल रैपिड रिस्पॉन्स टाइम ड्यूरिंग अ क्राइसिस। अब जब मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी थी रोबोटिक्स की, रोबोटिक आर्म्स वुड बी बेसिकली स्टोरिंग योर डेटा और मेंटेनिंग द डेटा रिस्टोरेशन प्रोसेस, कि वो डिस्क को कौन रोबोट मेंटेन, वो उस कोशिश यही है कि उसमें ह्यूमन एरर को एलिमिनेट किया जाए। ठीक है। और दूसरा ये कि स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, वर्क फ्लोज ऐसे बनाए जाएं कि आपका डेटा ऑटोमेटिकली, अब सिस्टम रिस्टोर, सिस्टम बैकअप्स जो हैं वो भी चल रहे होते हैं, इसी तरह बैकअप्स को ऑटोमेट किया जाता है। बेसिकली मकसद क्या होता है ऑटोमेट करने का? मैं भूल जाता हूँ जी, मैंने बैकअप करना था अगले हफ्ते अपने सर्वर का, मैं भूल गया। अब वो क्या होगा, नुकसान होगा। जस्ट इन केस उससे अगले दिन इंसिडेंट हो जाता है तो बैकअप था ही नहीं, वो एक डे का पूरा बैकअप जाया हो गया। इसी तरह इसको इसीलिए क्या ऑटोमेट इसलिए कर दिया जाता है ताकि ये ह्यूमन एरर बीच में से निकल जाए, और डेटा ऐसा ना हो कि एक मिनट का भी डेटा लॉस हो, या जो है वो, ताकि डेटा अप एंड रनिंग फौरी तौर पे रहे। तो उसकी कोशिश की जाती है कि मिनिमम डाउन टाइम रखा जाए उसके अंदर, और एनेबल रैपिड रिस्पॉन्स टाइम ड्यूरिंग द क्राइसिस, और सिमिलरली क्राइसिस में भी उसका रैपिड रिस्पॉन्स दिया। तो ये थी जी बैकअप और रिस्टोरेशन की बात। कंक्लूजन पे जाते हैं इसके। तो उसमें ये है कि इंसिडेंट रिस्पांस एसेंशियल्स, इंसिडेंट रिस्पांस में क्या क्या चीजें आ गई थी कि बेसिकली हमने जो अभी तक लर्न किया है वो इफेक्टिव इंसिडेंट रिस्पांस, क्या लाइफ साइकिल थी उसकी, उसके अंदर रैपिड डिटेक्शन एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, जो सिस्टमैटिक अप्रोच हमने अडॉप्ट की थी टू कंटेनमेंट, एडिकेशन एंड रिकवरी वाले फेजेस में। वो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की टेकअवेज हैं आपके लिए। और उसमें ये है कि आपने लाइफ साइकिल को अच्छे तरीके से फर्दर आपने अपने जहन में उसको कर लेना है फिर, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ एक्सपर्ट्स। टॉपिक छोटा नहीं है, बट बेसिकली इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स या फिर साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, और हमने ये भी देखा है कि उसकी साथ साथ हमने इंसिडेंट्स को अगर होते हैं तो उसका मकसद क्या होता है, ताकि हम अपनी सिक्योरिटी पोस्चर को कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सकें, हम लर्न कर सकें अपनी मिस्टेक से, हम इम्प्लीमेंट कर सकें करेक्टिव मेजर्स। ठीक है, टू स्ट्रेंथन द ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर को हम अच्छे तरीके से वो कर सकें मेंटेन। ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में आ जाता है। फिर उसकी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस हमने देखी कि हमने कैसे रोबस्ट डिजास्टर रिकवरी प्लान्स उसमें स्टडी किए, डाटा सेंटर साइट्स हैं और उसके रिस्टोरेशन या बैकअप्स कैसे किए जाते हैं, और अगर डिजास्टर हो जाए तो हाउ यू ना कीप अप एंड रनिंग योर बिजनेस, बिजनेस कंटिन्यूटी कहाँ से स्टार्ट की जा सकती है फिर से। इसके लिए पहले से प्रोसेसेस डिवाइस किए जाते हैं, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, और आपको आपकी रिहर्सल्स, आपकी जो जो उसको इमिटेट किया जाता है सेम डिजास्टर को, ताकि आपको पता चल सके कि व्हाट यू नीड टू डू ड्यूरिंग दैट डिजास्टर, हाउ टू क्विकली रन योर ऑपरेशंस फ्रॉम वेयर इट वाज। तो बिजनेस कंटिन्यूटी को देखा उसके अंदर, फिर हमने ऑपरेशन क्विकली रिस्टोरिंग ऑपरेशनल आफ्टर आफ्टर क्राइसिस। फिर कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि आप जब कोलैबोरेट, कोई भी काम अकेले नहीं किया जा सकता, चाहे वो इन इन एन एंटरप्रेन्योरशिप द पीपल आर देयर, दे नो दैट इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। ठीक है, अगर आप वन मैन सक्सेस कह लो तो इट नेवर हैपेंस, राइट। ये एक दीवाने का ख्वाब, मैं तो कहूंगा कि वो चीज वाली बात आ जाती है। You have to have a team, you have to have a work in the team, collaborating with others. It's always success comes through collaboration, right? आपको collaborate करना पड़ता है, और communication is the key for anything, whether it's from personal life to the business environment to cyber security to disaster। जहाँ भी communication है, जहाँ आपका communication fail हुआ, वहां पे समझ लें कि सबसे पहली जो चीज शुरू होती है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती है, because you're not communicating, you stopped communicating, or the things getting worse, right?
इसी तरह इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर हम बिजनेस उसमें देखें या डिजास्टर रिकवरी में या बिजनेस कंटिन्यूटी में देखें, तो आप कम्युनिकेट, हर स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करना पड़ता है। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव नाउ, आर वी ऑन द सेम पेज, इफ समथिंग हैपेंस gonna do this, are we following the procedures, these are the SOPs, are we really looking into the SOPs or are we just ignoring it, do we have a test on those SOPs? Do we have a rehearsals? Do we have the trainings of the employees? ये सारी कम्युनि जब इंसिडेंट हो जाता है, अगेन कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी क्रूशियल, राइट? आप कोलैबोरेट करते हो डिफरेंट टीम्स के साथ, फिर उनके साथ कम्युनिकेट करते हो, ठीक है? और इसमें बड़ा ब्लंट होके, उसमें ये नहीं होता कि पुट द पॉलिटिक्स असाइड, पुट एवरीथिंग असाइड, राइट? No matter you are an introvert, doesn't matter. You still have to be blunt. Whatever you think is this has to be done, this needs to be done, या मेरे हिसाब से ये गलत है या क्या, बोलना पड़ता है उस टाइम, ठीक है? हमारे पास एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं वॉर रूम, ठीक है? हर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का एक वॉर रूम होता है। क्या होता है वॉर रूम में? नाम से बड़ा अजीब सा लग रहा है जी, वॉर रूम। क्या वॉर होती है उसके अंदर? यस, उसके अंदर वॉर ही होती है किस्म की, बेसिकली उसके अंदर जंग छिड़ी होती है जब इंसिडेंट होता है। तो आई हैव सीन अ गाइस लिटरली शाउटिंग एट ईच अदर, राइट? बट वो मकसद क्या होता है? वो ये नहीं होता कि पर्सनल ग्रजेस अपनी निकाल रहे होते हैं बैठ के। वो बेसिकली यही हो रहा होता है कि अंडर अ पैनिक सिचुएशन, under a sort of to get the things done, so you got to take that sort of an approach, right? You cannot really keep yourself quiet when somebody is saying something which is not really beneficial to the organization, or या वो work नहीं करेगी, if you know that you would try to impose your sort of, तो उसमें फिर डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं, डिफरेंट चीजें चल रही होती हैं। अल्टीमेटली ऑब्वियसली द डिसीजन गोज टू somebody else, बट लेकिन you have to have your say। तो वो क्या होता है, दिस इज अनदर सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी, ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, ये किसका हिस्सा है, ठीक है? नो मैटर इफ इन दैट रूम इट वुड बी अ सीसो बैठे हुआ है, तो दूसरी तरफ साइबर एनालिस्ट बैठा हुआ है, साइबर एनालिस्ट हैज द इक्वल से एट दैट पॉइंट इन टाइम, ठीक है? तो वो बिल्कुल कह सकता है और उसको कुछ भी पेनलाइज नहीं किया जाता। द रीजन बीइंग इज के दैट इज द पार्ट ऑफ इट, ठीक है? तो collaboration and communication, this is something which is very very important in every aspect, ठीक है? तो ये बात ये ध्यान नशीन कर लें, ये बहुत जरूरी चीज है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड डिजास्टर रिकवरी एफर्ट्स रिलाई ऑन क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क, क्लियर कम्युनिकेशन and transparent engagement with relevant stakeholders, right? These words, you might have heard these words, but ये बहुत ज्यादा वेट है इनके अंदर, ठीक है? क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है? और ट्रांसपेरेंट एंगेजमेंट का मकसद ये होता है कि यू नॉट काइंड ऑफ हाइडिंग एनीथिंग, यू आर नॉट रियली कि आप you have to be transparent, right? Whatever you are saying, it it is got a meaning, right? It's got right, it always goes in the benefit of the organization। तो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स कौन कौन से इसमें आ जाते हैं? आपके आपके पास इंटरडिजिटल टीम्स हैं, इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम्स हैं, इसके बाद आपके पास जो है वो लीडरशिप टीम है, फिर इसके बाद आपके पास थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं, एमएसएसपीज कहते हैं उनको, मैनेज सर्विस प्रोवाइडर्स, एमएसपीज, ठीक है? दिस इज अनदर अगेन वन टर्मिनोलॉजी व्हिच हैज बीन कंटिन्यूअसली यूज्ड इन द साइबर सिक्योरिटी गेम, जिसमें कि एमएसपीज प्ले अ रोल, जो आपको थर्ड पार्टी सर्विसेज दे रहे होते हैं। मतलब मैं एक मैनेज शेयर सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं किसी कंपनी को जाके अपनी सर्विस, साइबर सर्विसेज, आई एम अ मैनेज सर्विस प्रोवाइडर टू दैट कंपनी, तो वो हमारे साथ होते हैं। फिर इसके अलावा आपके पास और कौन कौन होता है? यू विल हैव द लीगल एंड कंप्लायंस टीम्स, यू विल हैव द फोरेंसिक्स टीम्स, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इंसिडेंट्स। आप डिफरेंट टीम के साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हो, कम्युनिकेट कर रहे होते हो, ठीक है? तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होती हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क्स, ठीक है? इसमें फिर सो दिस इज समथिंग अ लर्निंग एज, बेसिकली जब आप ये करते हो, इसीलिए मैंने कहा था साइबर एनालिस्ट इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन एंड यू वुड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपका ये एक लर्निंग एज होता है, आप बहुत कुछ लर्न करते हो डाउन द लाइन, राइट? आप सीखते हो।
फिर आप आगे बढ़ते हो, आपका इंटरेस्ट किसी और एरिया में डेवलप हो जाता है, आप उस तरफ चले जाते हो, तो यू कैन स्विच द कैरियर ऑन, लेकिन ऑल विद इन साइबर सिक्योरिटी। इसी तरह एक टीम जिसको मैं बहुत कम ही मेंशन करता हूँ, बट यस दे आर द पेनिट्रेशन टेस्टर्स। ठीक है, उनका उनका एक लिमिटेड सा स्कोप, दे ऑलवेज डू द पेन टेस्ट, एथिकल हैकिंग एंड ऑल। लेकिन cyber, as I said, is the basically a parent sort of thing जिसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। इवन पेन टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ इट, बट वो एक लिमिटेड स्कोप है, वो सिर्फ वो पेन टेस्ट कर रहे हैं, वो एथिकल हैक कर रहे हैं, वो रेड टीम्स एक सेपरेट, उनका उनका काम ही यही है। ठीक है, तो ये सारे कोलैबोरेशन होती हैं। तो अच्छा, ठीक हो गया। अब मुझे बताएं, बिफोर काइंड ऑफ एंड अप दिस वन, any questions so far so that we can move on to another stuff?